Ayush, can you speak something? Hello, am I audible? Yeah, yeah, fine, thank you. Yeah, yeah. Let's wait for people to join and I'll start. So, for the people that are present over here right now, while we wait for other people to join, uh, I just wanted to make sure that everyone has followed the instructions that we gave beforehand. If you all have completed those instructions, please, use a thumbs up or something to, show us that you have completed that much part. Okay, Sahil, do you have a doubt? Okay, raising hands. So raising hands is going to be for doubts, especially, and whenever I ask you to unmute or react to something I'm saying, use some emote. Uh, we are going to be going in great depth. If you are taking notes, that would be advisable. कि आप कहीं पर लिख के रखो जो मैं चीजें बताने वाला हूँ, right? Because it's possible that after this workshop you forget some of the things. थोड़ा सा लंबा रहेगा, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव रहेगा. मैंने ना ऐसा ट्राई किया है कि आई कवर एवरीथिंग, राइट, फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ गेट टू GitHub and then open source contributions. Okay, so I've made the entire workflow in such a manner that आपको सारी चीजें समझ में आए. एंड ऐसा पॉसिबल हो सकता है दैट बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ दिस करिकुलम आप एक दो चीजें बीच बीच में भूल जाओ. सो इट्स एडवाइजेबल कि आप कहीं पर लिख के रखो, probably make some notes or something. How many people here have attended a CSI workshop previously? Damn, not a lot of people. Not a lot of people. I, expect that this meeting is interactive. जितना इंटरैक्टिव रहेगा ये मीटिंग, द बेटर इट वुड बी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? सो ये सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे बीच बीच में. आई होप टू सी सम इंटरेक्शन फ्रॉम यू गाइस. People that are new joining in, please make sure that you have completed the instructions that we gave beforehand. If you have any doubts, we have listed down some numbers in that message. You can contact them if you are stuck somewhere और वो complete नहीं हो पाया तो probably contact them. They'll help you out. I'll wait for 5 more minutes and then we'll begin this workshop.
for the people that are joining in right now, make sure that you've completed the instructions that we gave. The instructions are nothing but just some logins. You'll have to get your account set up on GitHub, and you'll have to have GitHub CLI for this. उसके अलावा और कुछ भी नहीं था उस इंस्ट्रक्शन के अंदर. Make sure that you've completed all of them. While we are waiting, how many of y'all have had experience with Git before? You can react with some emoji. ठीक है. Quite a few people have used Git before. Hopefully you can learn more, क्योंकि मैंने इतना exhaustive रखा है आज के syllabus को that I am sure that you'll learn something new as well. Do people over here contribute to open source projects? Has anyone done that? Open source contributions, or how many people want to do open source contributions? Because abhi GSOC aa raha hai. How many of like you all know about Google Summer of Code? Google Summer of Code के अंदर आप लोग को open source contributions करने पड़ते हैं to projects that are proper production level, you know, products. उनके ऊपर contributions करने पड़ते हैं. So if you all are planning to do GSOC this year, then तो ये workshop तो आपके लिए बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र की तरह एकदम, है ना. You'll be requiring all of the things that we'll cover today. GSOC के अलावा भी अगर आप कोई internship भी देख रहे हो, usually if you are working with a team, you'll require Git GitHub. So let's begin. I think this is a good number. Probably if more people join, we'll see what happens next. Okay. So let's begin with this workshop. I'll share my screen. I just want to know whether you all can see. Is my screen visible? Okay. So we'll begin by understanding the difference between Git and GitHub, and then slowly move on to all of the concepts. Okay. First of all, मैंने आप लोग को एक लिंक दिया था Git SCM का, right? To install Git into your device. अब ये जो Git है ना, Git is the पूरा का पूरा जो version controlling system है on your local machine. अब क्या होता है, ये सारे बड़े बड़े jargons क्या होते हैं, we'll come to that later, but just understand that Git means something that is happening on your PC and GitHub is happening on the cloud, right? You can probably see by reading over here, Git everything is local. Local मतलब क्या, आपके PC के ऊपर है, and GitHub का मतलब होता है कि वो किसी और cloud server के ऊपर है जो Microsoft चलाता है. Okay? Now, what is Git and why should we use Git in the first place? Right. Since you all, majority of people are from second year, third year, probably, you all might have not had that much experience with working in collaboration with a team. But मैं आप लोग को एक story बताता हूँ. So, in my career, I have won 7 hackathons, right? But the very first hackathon, जो मैं actually हारा था, in that hackathon, what happened is I had a team, 4 जन की टीम थी. मुझे गिट आता था, गिट गिटअप आता था. इनफैक्ट माय अकाउंट हैज बीन देयर फॉर द पास्ट 5 years, राइट? सो मुझे गिट गिटअप आता था एंड आई हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्ली फॉर द पास्ट 5 years. थोड़ा कम कम हो सकता है बीच में. सो बाकी तीनों को नहीं आता था एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि हम जो जो चेंजेस कर रहे थे, जो जो फाइल्स हम बना रहे थे, जो वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे, हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेज रहे थे. सो बेसिकली क्या हो रहा था, वो एक फीचर पे काम कर रहा था, फिर वो फीचर इंप्लीमेंट करके मुझे व्हाट्सएप कर रहा था उसकी फाइल. बाद में मैं एक फीचर पे काम कर रहा था, उसके अंदर चेंजेस करके मैं उसको व्हाट्सएप कर रहा था. और हम चारों के चारों एक ही ग्रुप के अंदर फाइल्स ही फाइल्स करते जा रहे हैं, हर जगह कोड है एंड देयर वाज टोटल केओस. जरा भी मैनेजमेंट नहीं था. गिट गिटहब जो है ना, आपको ये कोलैबोरेशन के अंदर हेल्प करते हैं. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, let's consider a scenario, right? Let's say you were to go on the International Space Station. यहाँ पर सबको पता है International Space Station के बारे में, ISS, right? It's a spaceship जो NASA चलाती है, right?
लेट्स से आप लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर हो, एंड यू आर एन एस्ट्रोनॉट ओवर हियर। तो आप यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट हो। नो, लेट्स से आपकी स्पेसशिप के साथ कुछ तो हो गया, बाहर से कोई तो डैमेजेस हो चुके हैं, एंड यू वांट टू गो एंड फिक्स दोस डैमेजेस, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि आपको आपके स्पेसशिप से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? आप बाहर अगर निकलना चाहते हो, अगर यहां पर सिर्फ एक और एक दरवाजा हुआ एंड आपने उस दरवाजे को खोल दिया, तो क्या होगा? जितना भी ऑक्सीजन या जितना भी आपका लाइफ के लिए जो भी चीजें चाहिए थी इस स्पेसशिप के अंदर, वो सारी बाहर निकल जाएगी स्पेस के अंदर। कैन एवरीवन रिलेट टू दिस? कि मतलब अगर आप स्पेस में हो, आपने अगर दरवाजा खोल दिया, सारा का सारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा एंड प्रोबेबली यूल सफोकेट, राइट? सो क्या करते हैं ये आईएसएस के अंदर? व्हाट डू द नासा के पीपल डू इज दे हैव टू गेट्स इंस्टेड ऑफ वन। सो क्या होगा? ये आपका स्पेसशिप है, ये आप एक गेट खोलोगे और आप यहां से निकल के इस जगह पे आ जाओगे, ठीक है? और बाद में आप इस गेट को फिर से बंद कर दोगे। सो इस गेट को बंद कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो? एक और गेट यहां पर खोल सकते हो एंड सीधा बाहर निकल सकते हो, राइट? अब क्या हुआ कि जितना भी ऑक्सीजन इतने एरिया के अंदर था, उतना ही हमने डिस्कार्ड किया। समझ में आया सबको? तो बेसिकली आपको स्पेसशिप से बाहर निकलना था, आप नहीं चाहते थे कि आपका सारा ऑक्सीजन उड़ जाए, तो आप एक सेकेंडरी स्पेस के अंदर गए जहां पर आप रुक सको, एंड देन आप बाहर निकले। जो गिट है ना, वो इसी तरह काम करता है, ठीक है? गिट के अंदर क्या होता है कि आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट, सब इंसान है, सबसे गलतियां हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि आपने कोई फाइल में ऐसा चेंज कर दिया कि आपका पूरा कोड बेस खराब हो गया। ऐसा पॉसिबल है कि आपने कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल की जो खराब थी, उसकी वजह से अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। या तो फिर लेट्स से आप एक फीचर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे एंड आप इतना आगे आ गए और बाद में आपको पता चला नहीं नहीं ये तो पूरा गलत था, मुझे अब फिर से पीछे जाना है, राइट? आई एम श्योर लोगों ने ना अपनी जिंदगी में गलतियां की होगी। मैंने मेरी जिंदगी जिंदगी में ना बहुत गलतियां की है। कभी कभी मुझे लगता है काश मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे जा पाता और ये चीज ठीक कर पाता, राइट? सो गिटहब क्या करता है? गिटहब गिव्स यू द एबिलिटी टू टाइम ट्रैवल इन योर प्रोजेक्ट कोड बेस। कैसे करता है ये? सो गिटहब मानता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना, वो एक लाइन की तरह है। ओके, सो आई ड्रॉ लाइन, ये आपका प्रोजेक्ट है, ओके? एंड ये जो पार्ट है वो आपका स्टार्ट है। आपने यहां से चालू किया जब आपके पास कुछ भी नहीं था आपके प्रोजेक्ट के अंदर, एवरीथिंग वाज ब्लैंक। आपने यहां से चालू किया, ठीक है? आप धीरे धीरे चेंजेस करते गए टुवर्ड्स टाइम, और अब यहां पर आ गए। सो दिस इज योर प्रोजेक्ट इन गिटहब। अब क्या होता है? ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि लेट्स से आपने चेंजेस किए, आप इधर तक आए टाइम के अंदर, बाद में यहां तक सब कुछ वर्किंग था, राइट? यहां पर एवरीथिंग वाज वर्किंग। नाउ यू मेड सम मोर चेंजेस एंड यहां पर जाके आपने आपका कोड खराब कर दिया। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू गो बैक टू दिस टाइम जब एवरीथिंग वाज वर्किंग, बिकॉज अभी जो आपने रायता फैला दिया उसको साफ करना पड़ेगा, राइट? सो यू वांट टू गो बैक इन टाइम। सो गिटहब क्या करता है? ये आपको वो जो हमने स्पेसशिप के अंदर समझा ना, ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है। देर आर 3 सेक्शंस गिटहब के अंदर मेजरली। दो लाइन बनाते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेक्शन। इसको हम बोलते हैं अनट्रैक्ड एरिया। सो अनट्रैक्ड एरिया क्या होता है? बेसिकली अपनी जितनी भी फाइल्स है उसको गिटहब नहीं देख रहा है, राइट? गिटहब को पता नहीं कि उनका हिस्ट्री क्या था, गिटहब को पता नहीं कि उनका अस्तित्व क्या था, किस तुमने बनाया किसी और ने बनाया, गिटहब को पता नहीं। अनट्रैक्ड का मतलब कि गिटहब ने अब तक उसको ट्रैक नहीं किया है, ओके? देन कम्स द सेकेंड एरिया विच इज कॉल्ड द स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया में क्या होता है कि आपने जितने जितने एडिट्स किए हैं उसको गिटहब ट्रैक कर रहा है इन रियल टाइम। नॉट रियल टाइम, देयर इज अ कमांड, बट लेट्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी राइट नाउ अंडरस्टैंड कि यहां पर गिटहब ट्रैक कर रहा है आपके चेंजेस को। एंड देन फाइनली कम्स द कमिटेड एरिया, ओके? सो कमिटेड एरिया क्या होता है? कमिटेड एरिया इज लाइक अ फोटोग्राफ, राइट? आप कभी घूमने जाते हो
एंड आपको ऐसा लगता है यार ये व्यू इतना सही है, मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, किसी को बोलता हूँ फोटो खींच ले मेरा, सो दैट आई कैन जब मेरा मन करे मैं मेरी मेमोरीज को ताजा कर पाऊँ, राइट? सो एक फोटो क्या होता है, एक टाइम के अंदर लिया हुआ एक स्नैपशॉट दैट यू वांट टू रेफर टू आगे जाके भी, आपको आगे जाके फिर से मन करे कि हाँ मैं मेरी मेमोरीज को ताजा करता हूँ। सो आप क्या करते हो, आप एक फोटो लेते हो। सो कमिटेड एरिया में क्या होता है कि आपने एक बार जब कमिट किया, गिटहब एक फोटो ले लेता है आपके कोड बेस का। वो फोटो जो होता है ना इज बेसिकली अनचेंजेबल वंस यू डू दिस। एंड आपको फिर से कभी आपको मन किया यहां पर आने का फिर से, तो यू कैन डू दैट। ओके, क्या इतना सबको समझ में आया? डज एनीवन हैव एनी डाउट्स? सबको समझ में आया, राइट? आई अज्यूम ये तो बहुत सिंपल था। वी हैव नॉट गॉट इनटू द कमांड्स येट। अब क्या होता है कि आपकी फाइल्स जो है ना यहां पर एग्जिस्ट करती है अनट्रैक्ड एरिया के अंदर। यहां पर जरा भी कुछ मैनेजमेंट है नहीं, इट इज ऑल केओटिक एंड एवरीथिंग। जैसे जैसे आप चेंजेस करते जाओगे, यू विल मूव योर फाइल्स टू द स्टेजिंग एरिया। थोड़ा जाड़ा है। यू विल मूव योर फाइल्स टू द स्टेजिंग एरिया, एक एक करके। स्टेजिंग एरिया के अंदर आप जितना रायता फैलाना चाहते हो उतना रायता फैला सकते हो आप, बिकॉज अ स्टेजिंग एरिया इज लाइक दिस सेकेंड कंपार्टमेंट। आपने एक दरवाजा खोला और आप इस कंपार्टमेंट में आ गए, एंड यहां पर आपको जो करना है कर सकते हो, once you ensure that everything is working, right? So yeah, first ensure everything is working. अगर आपको लगता है कि आपने जो फीचर इंप्लीमेंट किया है वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, सारा कोड इज वर्किंग फाइन, देन व्हाट विल यू डू इज you will move all of the files from the staging area to the committed area, right? अब ये हम कैसे करते हैं, इसके लिए तीन कमांड्स हैं स्पेसिफिकली, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, वील गेट इनटू हैंड्स ऑन। आई होप सब लोग अपने लैपटॉप पे रहेंगे। इफ यू आर नॉट ऑन योर लैपटॉप, खोल दो उसको। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं आपको बोलूंगा कि आप इंप्लीमेंट करके दिखाओ, ठीक है? या तो फिर इमोट करके दिखाओ या कुछ भी करके दिखाओ, इंप्लीमेंट करो इस चीज को, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि जिनने जितने अपना लैपटॉप खोल दिया है वो एक टेम्पररी फोल्डर बना दे जिसके अंदर कुछ भी ना हो। ओके, सो आई हैव मेड अ फोल्डर गिटहब वर्कशॉप करके, एंड इसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये मैंने मेरा एक स्क्रिप्ट डाल के रखा है फिलहाल, सो दैट अगर मैं बीच में कहीं अटक जाऊं, सो आई रिमेंबर वेयर टू कंटिन्यू, राइट? और ये जो फोल्डर आप बनाओगे ना, उसके अंदर आप कोई भी आपका टर्मिनल खोल सकते हो, या तो फिर जहां पर भी आप कोड एडिट्स करते हो, जो कुछ भी करते हो वो खोल लो। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज आई विल ओपन अप अ टर्मिनल ओवर हियर, इसी इसके अंदर, and I will also open up VS Code. Okay, so code dot, so ये क्या करेगा, VS Code खोल देगा इस डायरेक्टरी के अंदर। Now there is nothing inside this right now except for this one file that I made earlier. यहां पर हम पहले गिट को बोलेंगे ट्रैक करना चालू करो, राइट? बिकॉज अगर मैं कोई और फाइल बनाऊं यहां पर, अब जैसे ये फाइल है ना, ये आप देख पाओगे कि इज एज इट इज, कोई टैग नहीं है इसके ऊपर। यूजुअली अगर आपने VS कोड वगैरह किसके अंदर एक्सटेंशंस लोगे तो उसके साथ एक टैग्स वगैरह ये सब मिलते हैं आपको। मैंने आई गेस गिट लेंस करके कुछ तो लिया है एक्सटेंशन, उसके अंदर अभी नहीं आते, ठीक है? एक बार आपने आपका प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया, आप इस स्टेट के अंदर हो जो यहां पर है, दिस दिस डॉट। ओके, अभी आपके पास कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे गिट भाई मुझे ना आपकी जरूरत है यहाँ पर, प्लीज इनिशियलाइज योरसेल्फ हियर। सो गिट इनिट हम रन करते हैं। whenever you have any empty folder, you'll run git init so that git can start tracking those files. जैसे मैंने git init किया, can everyone see that there is a u over here? I want some emotes right now. Can everyone see that there is a u over here? इसको बड़ा कर सकते हो क्या? हाँ, hopefully everyone can see this. Yes. So u का मतलब क्या है? u का मतलब है अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड मतलब क्या है? गिटहब ने अब तक उस फाइल को ट्रैक करना चालू नहीं किया, एंड गिटहब को पता नहीं कि ये किसने बनाया, राइट? मुझे पता है मैंने बनाया इस फाइल को, गिटहब को नहीं पता ये किसने बनाया। अब मैं क्या करूंगा, आई वॉन्ट टू मेक अ न्यू फाइल। लेट्स से मैंने और कुछ फाइल्स बना दी, टाइम पास के लिए मैं फिलहाल index.html बनाऊंगा, ठीक है? index.html बनाया, इसके अंदर थोड़ा सा लेट्स से मैंने एक पूरा वेबसाइट ही खड़ा कर दिया।
इसका नाम रख देते हैं गिट सेट गो। ठीक है, मैंने ये फाइल बनाई। अब आप देख पा रहे रहोगे कि दोनों के दोनों अनट्रैक्ट है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे पता है दैट दीज फाइल्स आर गुड राइट नाउ, तो मैं उनको स्टेजिंग एरिया के अंदर डालना चाहता हूं। फॉर पुटिंग अ फाइल इनटू अ स्टेजिंग एरिया, द कमांड इज वेरी सिंपल, गेट एड एंड द नेम ऑफ द फाइल। ओके, उससे क्या होगा, अगर समझो मैंने ये डाल दिया, ऐसे किया, यू विल सी दैट index.html के आगे ए दिख के आ रहा है। कैन एवरीवन सी दिस? ए दिख के आ रहा है। ए का मतलब होता है एडेड। एडेड यानी कि इसको हमने स्टेजिंग एरिया में डाल दिया फिलहाल। अब फिलहाल जो है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट एवरीवन फॉलोज अलोंग, क्योंकि मुझे पता है आप लोग दो चीज साथ में कर रहे हो, आप मेरा स्क्रीन भी देख रहे हो, आप टर्मिनल में भी लिख रहे हो, ये नहीं हो पाएगा राइट। फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, बाद में आपको टाइम दूंगा ये करने को। ठीक है, मैंने इस फाइल को डाल दिया मेरे स्टेजिंग एरिया के अंदर। बट लेट्स से आपके पास यहाँ पर 10-12 फाइल्स है, यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स है, तो आप हर एक को एक एक करके नहीं डाल सकते राइट। सो आप क्या करोगे, गिट एड डॉट। गिट एड डॉट क्या करता है, जितने भी फाइल्स इस डायरेक्टरी के अंदर है उनको स्टेजिंग एरिया में डाल देता है। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज इन माय स्टेजिंग एरिया। यहां पर पहले मैं मेक श्योर करूंगा दैट एवरीथिंग इज वर्किंग राइट। सो लेट्स सी, अरे यार मैंने कुछ डाला ही नहीं इस बॉडी टैग के अंदर राइट। सो लेट्स मेक एन h1, इसके अंदर लिखते हैं गेट सेट गो एंड एक पैराग्राफ बनाते हैं। जिनको HTML नहीं आती वो कैन फॉलो अलोंग एज इन के मैं कन्वर्स कर रहा हूं आपके साथ। सो पैराग्राफ बनाते हैं, दिस इज द फर्स्ट कमिट। ओके, सो यहां पर मैंने कुछ चेंजेस की, नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। एवरीवन कैन नाउ सी दैट फाइल के आगे m दिख के आ रहा है, मॉडिफाइड। m का मतलब होता है दैट आई मेड सम चेंजेस। ये जो चेंजेस है ना वो अभी गेट ट्रैक करना चालू कर रहा है राइट। जिनको ये चीजें नहीं दिख के आ रही है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी एबल टू सी राइट ये सारी चीजें, ये क्योंकि मैंने बहुत हैवीली कस्टमाइज किया है मेरे इसको, तो वो क्या कर सकते हैं, गेट स्टेटस यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई वांट एवरीवन टू गेट टिल दिस पॉइंट। आई वांट एवरीवन टू गो मेक अ फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाओ, उस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करो, कुछ भी रह सकता है राइट। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप एक HTML फाइल बनाओ, आप एक टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हो। टेक्स्ट फाइल बनाओ एंड उसके अंदर जाओ, गिट को इनिशियलाइज करो एंड फाइल्स को ऐड कर दो। जब आप लोग कर दोगे, आई वांट अ थम्स अप। ओके, सो हम लोग अब जो है स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुके हैं। अब हमने मेक भी श्योर कर दिया है दैट एवरीथिंग इज वर्किंग राइट नाउ। ओके, सो माय कोड फाइल्स वर वर्किंग, देयर आर नो एरर्स, कोई बग्स नहीं है इस चीज के अंदर। नाउ आई वांट टू कमिट ऑल ऑफ दीज फाइल्स। ओके, सो कमिट कैसे करेंगे इसको, यहां पर आप लोग देख पा रहे रहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव, बिफोर मूविंग अहेड, थोड़े 10-12 जन हैंड्स रेज करके दिखा दो मुझे कि आप इधर तक पहुंच चुके हो, गिट स्टेटस तक पहुंच गए। वैसे गिट स्टेटस क्या करता है, गिट स्टेटस आपको बताता है कि अभी फिलहाल करंट स्टेट क्या है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि मैंने 2 नई फाइल्स बनाई, वो गिट ने रिकॉर्ड किया, बाद में मैंने मॉडिफाई किया एक फाइल को, वो जो है ना अभी फिलहाल स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं है। मैं बताता हूँ क्या होगा बेसिकली। बट कुछ लोग, जिन लोग ने कर दिया है ना, प्लीज रेज योर हैंड्स जिनने कंप्लीट कर दिया इतना गिट स्टेटस तक। ओके, I can see at least 5-6 people have done this. Harshita has done this. Yuvraj. I'll wait for a few people. Ayush, Vaibhav. Okay. Arnav. Okay. So a decent amount of people have reached this point. ठीक है, गिट स्टेटस तक आपको आके दिख रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुई है, आपने क्या क्या फाइल्स बनाई। नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू, मेरा सब कुछ वर्किंग है, आई वांट टू कमिट ऑल ऑफ दिस। सो उसके लिए कमिट लिखते हैं हम लोग सीधा सीधा, गेट कमिट एंड देन डैश एम। डैश एम क्यों यूज करते हैं, हम लोग एक मैसेज लिखेंगे अभी फिलहाल। ये मैसेज जो होता है ये अपने आप को बताने के लिए होता है कि मैंने इस कमिट में क्या क्या किया। तो लेट्स से आई मेड द index.html फाइल। ठीक है, ये मेरा मैसेज है। अब ये मैसेज मेरे को कब काम आएगा वो मैं बताता हूं, बट फिलहाल ये समझ लो कि ये जो मैसेज होता है इसके अंदर आप एक्सप्लेन करते हो अपने आप को
कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए इसके अंदर। ओके, सो मैंने गिट कमिट कर दिया। ये जो है ना प्योर इंग्लिश है। यू विल नोटिस दैट ऑल ऑफ द कमांड्स आर वेरी सिंपल, मैक्सिमम 2 से 3 वर्ड्स के रहते हैं कमांड्स। तो मैंने कमिट कर दिया। नाउ यू विल बी एबल टू सी क्रिएट मोड एंड ये दोनों फाइल्स के नाम है। ओके, सो ये कमिट हो चुका है अब मेरा। बट अभी भी आप देख पाओगे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर एम दिख के आ रहा है, राइट। इफ आई टाइप गिट स्टेटस राइट नाउ, आप देखोगे अब तक मॉडिफाइड दिख के आ रहा है। सो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली जब मैंने मेरे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को बनाया और उसको स्टेजिंग एरिया में डाला, और उसके बाद जो चेंजेस किए उनको मैंने अनट्रैक्ट में ही रहने दे दिया। ओके, सो एक बार स्टेजिंग एरिया में डाला मैंने, गिट को समझ में आ गया हाँ ऐसा ऐसा हुआ इस फाइल में। उसके बाद जो भी चेंजेस हुए उनको मैंने फिर से स्टेज नहीं किया। ओके, आई केप्ट देम इन दी अनट्रैक्ट एरिया। सो मेरे को बिफोर एवरी कमिट आई हैव टू मेक श्योर कि आई एड ऑल ऑफ द फाइल्स। ओके, बट लेट्स से मैं भूल गया था, राइट। अब क्या किया जाए, अब तो मैंने ये सारी गलतियां कर दी। सो मैं क्या करूंगा, फिर से गिट ऐड करूंगा और एक और कमिट बनाने के बदले, बिकॉज क्या था कि मैं मेरा यहां तक सब कुछ वर्किंग था, राइट। तो मुझे एक और कमिट नहीं बनाना। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू गिट कमिट डैश डैश अमेंड। ओके, सो अमेंड क्या करता है, अमेंड बेसिकली बोलेगा कि आपका जो प्रीवियस कमिट था उसके अंदर ये चीजों को भी ऐड कर दो, जरा मैं भूल गया वो डालना इन चीजों को, राइट। तो जैसे मैं ये करूंगा, ये मुझे फिर से कुछ तो मैसेज लिखने बोलेगा। आई कैन बेसिकली टाइप, अच्छा इससे बाहर निकलने का ना ये रहता है जरा झंझट रहता है। ओके, ये पे मैं इसके लिए, सो जिनको, जो लोग वहां पर फंस चुके हैं ना, आई वुड रिकमेंड दैट यू टाइप गेट कमिट डैश डैश अमेंड डैश नो एडिट। सो बेसिकली क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि आपने जो जो चेंजेस किए हैं उस मैसेज को चेंज कर देते हैं ना, क्योंकि आपने जो पहले मैसेज लिखा था वो किसी और चीज के बारे में था, अभी मैसेज चेंज कर देते हैं। सो उसके बदले मतलब जो लोग विम में अटक चुके हैं अभी, विम से निकलने के लिए आपको एस्केप कोलन क्यू लिखना पड़ता है और एंटर दबाना पड़ता है जो अटक गए, ठीक है। सो गिट अमेंड डैश डैश नो एडिट, नो एडिट से क्या होगा, बेसिकली आपके जो भी चीजें हैं ना उनको ये पुश कर देगा, कमिट के अंदर डाल देगा, बट नया कमिट नहीं बनाएगा, राइट। एंड ये जो है एक मैसेज के लिए आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, पहले उसने मैसेज डालने बोला। अच्छा चलो देखते हैं कि मेरे कितने कमिट्स हो चुके हैं, राइट। सो अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कितने कमिट्स हुए हैं अब तक, एंड आई वांट टू नो कि क्या क्या कमिट में मैंने क्या क्या किया था, सो आई कैन डू गेट लॉग। ओके, सो गिट लॉग में क्या सब लोग देख पा रहे हैं कि मैंने एक कमिट बना दिया है, ठीक है। फिलहाल एक्सप्लेनेशन चल रहा था, अभी मैं आप लोग को बोलूंगा करने को ये चीज, बट कैन एवरीवन सी दैट नाउ देयर इज अ कमिट, और कमिट के साथ साथ दिख रहा है कि किस टाइम पे किया मैंने, कब किया इस चीज को। एवरीवन कैन सी दिस, यस। गिट स्टेटस पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा है ना, उसके लिए आपको पहले चेंजेस करने पड़ेंगे कोई। बेसिकली जो स्टेटस होता है वो आपको कोई चेंजेस जो आपने किए रहेंगे ना उनको दिखाता है, राइट। अगर कोई चेंजेस नहीं हुए तो गिट स्टेटस एम्प्टी देगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर आके अभी गिट स्टेटस लिखूंगा, सो इट विल से दैट नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब क्या कि मैंने कोई चेंजेस नहीं किया अभी कमिट के बाद। ओके, सो क्या सबको समझ में आया ये चीज। गिट कमिट क्या करता है, हमारी स्टेजिंग एरिया की सारी फाइल्स को लेगा और उनको कमिट कर देगा, बट जो चीजें आप भूल गए स्टेजिंग एरिया में डालना वो हमेशा अभी अनट्रैक्ट रहेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस कमिट के अंदर, अरे भाई मैं जरा भूल गया था फाइल्स डालना, तो आप यूज करोगे गेट कमिट अमेंड एंड नो एडिट। नो एडिट क्या करेगा, वो बेसिकली बोलेगा कि मेरे को मैसेज को चेंज नहीं करना, वो वैसे ही रहने दो। अच्छा, ये जो मैसेज था ना वो आपको गेट लॉग के अंदर यहाँ पर दिख के आएगा। सो आई मेड दी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, राइट। सो गिट लॉग आप करते हो तब आपको सारे के सारे आपके कमिट्स दिख के आएंगे, ठीक है। चलो अब मैं चाहता हूं कि जिन लोग ने भी गिट ऐड किया था वो भी गिट कमिट करेंगे, एंड एक कमिट बनाओ और गिट लॉग कर दो, ठीक है। गिट लॉग के अंदर अगर आपको आपका कमिट दिख के आ रहा है देन आई वांट अ थम्स अप। अगर नहीं दिख के आ रहा है, कोई एरर हो रहा है, तो देर आर नंबर्स जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। वी हैव गिवन यू ऑल द नंबर्स ऑफ आवर वेबटेक ऑफिसर्स। ओके, आयुष, चंद्र भानु एंड हर्षित, हर्षित फॉलो अलोंग कर रहा है मेरे साथ। वैभव, ऋषभ,
ओके, आई वांट एवरीवन टू बी इंटरैक्टिव मैन यार, ये हम सब सीखना चाहते हैं साथ में, राइट? एवरीवन जीसॉक तो करोगे राइट, या आगे जाके हैकाथॉन्स करोगे या कंपनी में काम करोगे, यू विल रिक्वायर गिट गिटअप, थोड़ा इंटरैक्टिव रहो। ओके, तो गिट लॉग करके अब मुझे दिख रहा है कि क्या क्या कमिट्स थे मेरे। सो आई गो बैक टू एक्सप्लेनेशन नाउ। जो लोग फॉलो अलोंग कर रहे हैं गिट कमिट तक रहो, अब मैं एक्सप्लेनेशन चालू कर रहा हूँ फॉर दी सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब क्या है कि लेट्स से आई मेक सम मोर चेंजेस एंड मैंने गलती से सारा कोड उड़ा दिया। अब ये कोड उड़ा दिया और मैंने गलती से इनको कमिट कर दिया। गलतियां होती रहती है सबसे, राइट? तो डैश एम फिक्स, चलो मैंने एक कमिट कर दिया और मेरा सारा कोड अब उड़ चुका है। ठीक है, यहां पर अभी आप देख पा रहे होगे कि ये सारा का सारा गिट ने ले लिया है। एंड नाउ लेट्स से बाय ये एक एक फाइल है, एक फाइल के अंदर तो मैं कंट्रोल जी कर सकता हूँ पीछे जाने के लिए। अगर समझो 10-12 फाइल थी या कोई लाइब्रेरी थी, करप्टेड लाइब्रेरी, करप्टेड फाइल्स और वॉट, अभी आपने खराब कर दिया इस चीज को, आई वॉन्ट टू गो बैक। ठीक है, तो पीछे कैसे जाए? सो पहले गिट लॉग करते हैं। आप लोग एक चीज देख पाओगे कि यहाँ पर हेड लिख के आ रहा है। हेड मतलब क्या? हेड मींस द करंट कमिट। ये जो कमिट है इज द लेटेस्ट कमिट। ओके, उसके आगे आगे मेन दिख के जो आ रहा है ना, वो मैं बताता हूं अभी क्या होगा उसका मतलब। बट उसके पहले आप लोग ये समझ लो, हेड मींस द करंट कमिट और ये जो है पुराना कमिट है। ठीक है, यहां तक एवरीथिंग वाज वर्किंग फॉर अस, है ना? एवरीथिंग वाज वर्किंग एट दिस कमिट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हैश दिख के आ रहा है इतना, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। ओके, आई वॉन्ट टू गो बैक टू दिस। ओके, तो मैंने वो कॉपी किया, बाहर आया मैं, एंड आई विल से गेट रीसेट एंड आई विल टाइप दैट हैश। ओके, जैसे ही मैं ये करूंगा यू विल सी दैट अभी ये एम दिख के आ रहा है यहां पर। ओके, एक बार जब मैं रीसेट करता हूं विदाउट एनी फ्लैग्स, ठीक है, मैंने कोई फ्लैग्स नहीं लगाया, सिर्फ गेट रीसेट और ये किया, इसने क्या किया, जो जो मेरी चेंजेस थी उनको कमिट से हटाया और स्टेजिंग एरिया में डाल दिया। ओके, सो बेसिकली इज द सेम एज गोइंग फ्रॉम स्पेस टू माई स्पेसशिप, राइट? सो फिलहाल मैंने कमिट से उठाया और स्टेजिंग एरिया में डाल दिया। अब अगर मैं गेट रिवर्ट करूं, गेट रिवर्ट टू लेट्स से माय प्रीवियस कमिट, सो हेड इज माय लेटेस्ट कमिट और समथिंग। ठीक है, चलो ये फिलहाल दिख के नहीं आ रहा है। व्हाट आई कैन डू इज इंस्टेड, मैंने वो जो हैश डाला था उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं यहां पर गेट रीसेट के आगे डैश डैश हार्ड। इसका मतलब क्या कि मेरे जो चेंजेस थे ना उनको तो स्टेजिंग एरिया में मत रख, उनको निकाल ही दे, क्योंकि मुझे वो चेंजेस चाहिए ही नहीं। अब फिलहाल जो है ना गेट रिवर्ट बेसिकली क्या करता है, गेट रिवर्ट आपके प्रीवियस कमेंट पे लेके जाता है ना? अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज गेट रिवर्ट जो है ना आपके लेटेस्ट कमिट पे लेके जाएगा, बट लेटेस्ट कमिट कौन सा वाला है? खराब वाला है, राइट? आई वॉन्ट टू रिमूव दैट कमिट कंप्लीटली। सो मैं क्या करूंगा, गेट रीसेट हार्ड और वो हैश लिखूंगा। एज सुन एज आई डू दिस, आप देख पा रहे रहोगे दैट ऑल ऑफ माई कोड इज बैक, राइट? क्या सबको इतना समझ में आया दैट गेट रीसेट क्या करता है? आपके कमिटेड फाइल्स को एडिट करता है गेट रीसेट। गेट रिवर्ट बेसिकली क्या करता है? आपके लेटेस्ट कमिट पे लेके जाता है। बट अगर मैं हार्ड यहां पर ना लिखूं, गेट रीसेट हार्ड ना लिखूं, तो क्या होता है कि वो कमिट अब तक वहां पर एग्जिस्ट करता है, उसने सिर्फ स्टेजिंग एरिया में डाल दिया आपके फाइल्स को, राइट? सो इसके लिए क्या हो रहा था, गेट रिवर्ट उसी जो खराब कोड था ना उसके ऊपर लेके जा रहा था, राइट? तो गेट रीसेट हार्ड क्या करेगा, उस कमिट को ही उड़ा देगा। सो अगर मैं अभी गेट लॉग करूं, यू विल सी दैट देयर इज ओनली वन कमिट राइट नाउ, जो लेटेस्ट वाला था वो उड़ गया। समझ में आया सबको? आई वॉन्ट अ थम्स अप इफ एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो गेट रीसेट हार्ड क्या करता है कि जो आपका हैश था, ये वाला जो नंबर है जो आपने डाला जहां पर आप जाना चाहते थे, उसके पहले के जितने भी कमिट्स थे उन सबको उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, और आप देख पा रहे रहोगे कि मेरा सारा कोड वापस आ चुका है अभी। सो आई वॉन्ट एवरीवन कि आप दो कमिट्स बनाओ। ठीक है, एक कमिट जो आपने सबसे पहले बनाया, थोड़ा एडिट्स करो, नया कमिट बनाओ एंड ट्राई टू गो बैक। इफ यू कैन गो बैक देन आई वांट अ थम्स अप राइट नाउ, और यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट मोर अटेंशन। So make two commits, git add, git commit,
एंड देन प्रीवियस कमिट पे जाने की कोशिश करो यूजिंग गेट रीसेट हार्ड। ठीक है, आई कैन सी अ फ्यू पीपल दैट कैन डू दिस। यार ये जो नाम है ना, ये रिपीट हुए जा रहे हैं बार बार, ये लोग ही फॉलो अलोंग कर रहे हैं। देर आर 95 पीपल इन दिस मीटिंग राइट नाउ। सब लोग इंटरैक्ट करो यार। ओके, प्राकृति, ऋषभ, नीलसन, अमोघ। ओके, सो y'all are now able to go back to a commit। ठीक है, now let's go back to our whiteboard and understand a new concept। हमने अभी क्या किया? हमारा जो खराब कोड था, हम फिर से जा पाए पीछे। अब क्या हो रहा है कि गिटहब क्या बोलता है कि ये जो आपका है ना प्रोजेक्ट, ये जो आपका टाइमलाइन चल रहा है, इसमें ऐसा पॉसिबल हो कि आप ना 3-4 बार पीछे चले जाओ। लेट से मैंने एक बार इधर से गया था, बाद में मैंने बोला नहीं 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 नहीं, तो मैं एक नया कमेंट बना देता हूँ। बाद में मेरे को समझ में आया कि ये दोनों कमेंट ऐसे थे। सो आप देख पा रहे हो कि कितना रायता फैल रहा है यहाँ पर। एक ही लाइन के अंदर सारा का सारा रायता फैला हुआ है हमारा। सो गिटहब जो गिट के लोग थे, एक्चुअली मेरे को नाम पता है उसका, लाइनस टॉरवल्ड्स। लाइनस टॉरवल्ड्स इज द सेम पर्सन जिसने लिनक्स बनाया, राइट? जिसने लिनक्स बनाया उसी ने गिट भी बनाया था। सो उस बंदे ने बोला कि ये ना एक ही लाइन के ऊपर सारा का सारा रायता फैलाने से अच्छा क्यों ना हम ऑल्टरनेट टाइमलाइंस बना पाए। सो लेट्स से इस कमिट के बाद मुझे एक फीचर बनाना है, तो मैं उस फीचर के लिए एक नया टाइमलाइन बना पाऊं। कितने लोग ने यहां पर लोकी देखा है? टीवीए वो पता रहेगा लोगों को, मार्वल्स का लोकी। लोकी के अंदर क्या होता था? जब भी आप एक डिसीजन लेते हो, हर डिसीजन पे एक नया टाइमलाइन बनता है, जिसके अंदर आपने एक दूसरा चॉइस लिया रहेगा। समझो, एक वर्ल्ड है जिसके अंदर आपने कोई और चॉइसेस लिए, एक वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई और चॉइसेस लिए। गिटहब सॉरी गिट जो है आपको वो चीज करने को अलाउ करता है, राइट? सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक ब्रांच। ओके, सो एक ब्रांच क्या होती है? एक ब्रांच इज अ सेपरेट टाइमलाइन फ्रॉम योर जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसका सेपरेट टाइमलाइन है, जिसके अंदर आप सारा का सारा चेंजेस कर सकते हो। एंड जस्ट लाइक टीवीए, राइट? टीवीए सबको पता है, राइट? टीवीए, आई विल राइट ओवर हियर। टीवीए वाज द अथॉरिटी, जिनको पता रहेगा लोकी के अंदर देवर दी अथॉरिटी, जो लोग ये टाइमलाइंस को मैनेज करते थे, राइट? अगर आपने इस ब्रांच के अंदर सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया अगर, राइट, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यू कैन कंप्लीटली डिलीट दिस ब्रांच। ठीक है, सो एक ब्रांच क्या होता है? ब्रांच इज अ सेपरेट टाइमलाइन, उसके अंदर आप सारा का सारा कमिट्स करो, जितने भी आपको फीचर्स इंप्लीमेंट करने दे करो। अगर आपने खराब कर दिया उस ब्रांच को तो आप डिलीट कर सकते हो उसको। ओके, सो दैट इज व्हाट ब्रांचेस गिव यू। बट लेट्स से ये जो ब्रांच अभी चल रही है, ये आपने एक फीचर के लिए बनाई थी। यूजुअली हम जो ब्रांचेस बनाते हैं वो एक फीचर के लिए बनाते हैं। जैसे कि समझो मैं एक ऐप बना रहा हूं, ठीक है? ऐप के अंदर मैंने होम पेज बना दिया, होम पेज के बाद अब मुझे एक नया पेज बनाना है, सो दैट इज अ न्यू फीचर। तो हर एक जो न्यू फीचर होता है उसके लिए आपको एक नया ब्रांच बनाना चाहिए। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। यूजुअली जब आप गिटहब करना चालू करोगे, गिटहब करोगे, यूजुअली हर एक फीचर के लिए आपको एक नया ब्रांच बनाना चाहिए, ताकि अगर आपने खराब कर दिया आपके कोड को तो यू कैन कंप्लीटली डिलीट दिस ब्रांच। अब लेट से आपने इस फीचर को इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये जो आपका ब्रांच चल रहा था, आप इसी ब्रांच को मर्ज कर सकते हो आपके मेन ब्रांच के साथ। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ कि जब मेरा फीचर इंप्लीमेंट हो गया, मैंने उसको मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर दिया। सिमिलरली इट इज पॉसिबल दैट आप एक नहीं, आप बहुत सारी ब्रांचेस भी बना सकते हो, अलग अलग टाइम पे भी बना सकते हो, राइट? सो लेट्स से मैंने एक ही जगह से यहां पर दो ब्रांच बना दी, राइट? ये दोनों के बीच में टाइम अलग अलग है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप इस ब्रांच को लो और इस ब्रांच के साथ मर्ज कर दो, ये भी पॉसिबल है, राइट? और बाद में आपने फाइनली जाके इसके साथ मर्ज कर दिया। सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, राइट? ये सारा आप किया कैसे जाए? कमांड्स के अंदर करके देखते हैं, अभी हैंड्स ऑन करते हैं। तो आई वांट एवरीवन टू बी बैक ऑन माय टर्मिनल स्क्रीन। चलो सबसे पहले एक ब्रांच बनाते हैं। लेट्स से आई वांट टू मेक अ न्यू फीचर। मैंने इंडेक्स पेज बनाया, यानी कि जो होम पेज था वो बना दिया।
अब मैं एक नया ब्रांच बनाना चाहता हूँ. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टाइप गेट ब्रांच, सॉरी गेट चेकआउट. तो गेट चेकआउट क्या करता है बेसिकली, इट गोज टू अ ब्रांच, बट मुझे एक ब्रांच पे जाना नहीं है, मैंने अब तक कुछ बनाया नहीं है. सो आई विल टाइप डैश बी. डैश बी एक नए ब्रांच को बनाएगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो. सो लेट्स मेक अ न्यू ब्रांच, उसका नाम रखेंगे अबाउट. सो मैंने होम पेज बना दिया, अब अबाउट पेज बना रहा हूं मैं. गेट चेकआउट डैश बी अबाउट. आप लोग देख पा रहे होगे मेरे टर्मिनल में नाम बदल गया, राइट. पहले मेन दिख के आ रहा था, अब अबाउट दिख के आ रहा है. एंड यहां पर दिख रहा है स्विच्ड टू अ न्यू ब्रांच. फिलहाल कोई करो मत इंप्लीमेंट, आई एम शोइंग यू ऑल हाउ टू डू दिस, उसके बाद करना. ओके, बिकॉज इट इज वेरी मच पॉसिबल आप थोड़ा खराब कर सकते हो, उसको पहले देख लो. ठीक है. सो पहले मेन था यहाँ पर, अब अबाउट हो चुका है. अच्छा, मैं देखूं कैसे कि मैं करंट ब्रांच कौन से पे हूं. मेरे टर्मिनल पे तो दिख रहा है, आपके टर्मिनल पे दिखेगा नहीं. सो उसके लिए होता है गेट ब्रांच डैश ए. अच्छा, यहां पर आप लोग देख पा रहे रहोगे देयर आर टू ब्रांचेस, वन इज द मेन ब्रांच. यूजुअली जो मेन ब्रांच होती है या मास्टर ब्रांच होती है, बेसिकली ये जो दो टर्म्स है ना, वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम लोग. सो यहां पर मेन स्लैश मास्टर. सो ये जो दो ब्रांचेस होती है, ये आपका मेन प्रोजेक्ट होता है. सो आपका ये जो प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, ये जो यूनिवर्स चलता आ रहा है, राइट. एंड ये जो ब्रांच है ना, अभी ये एक दूसरी ब्रांच है जिसका नाम आप दे सकते हो, राइट. सो अभी आप लोग देख पा रहे रहोगे अबाउट के बाजू में एक स्टार दिख के आ रहा है, राइट. स्टार मतलब क्या कि मैं अभी इस ब्रांच के ऊपर हूं. अच्छा, मैं इस ब्रांच के अंदर जो भी आप चेंजेस करूंगा, सो लेट्स मेक अ न्यू HTML फाइल. यहां पर मैं बोलता हूं दिस इज द अबाउट पेज, एंड लेट्स मेक H1 हेडर. यहां पर भी दिस इज CSI वेसेट, है ना. ऐसा मैंने कुछ लिख दिया. यहाँ पर आप लोग देख पा रहे रहोगे दिस इज एन अनट्रैक्ड फाइल राइट नाउ. स्टेटस करके भी दिखा देता हूँ. सो दिस इज अ न्यू फाइल, राइट. अनट्रैक्ड फाइल्स करके आपको यहाँ पर दिख रहा रहेगा. सो आई विल ऐड दिस फाइल एंड आई विल कमिट दिस फाइल. ओके, सो कमिट के अंदर मैं लिखूंगा एडेड अबाउट डॉट HTML. ओके, जैसे ही मैंने ये किया, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ. लेट्स से आई वांट टू गो बैक एंड आई वांट टू गो टू माय मेन प्रोजेक्ट. ये ब्रांच तो चलता आ रहा है, आई वांट टू गो टू माय मेन ब्रांच, या आई वांट टू चेंज माय ब्रांच. अगर आपको कभी भी आपके ब्रांच को चेंज करना है तो यू यूज गेट चेकआउट. सो आई कैन गो बैक टू मेन. गेट चेकआउट मेन से क्या होगा, अब मैं मेरे मेन ब्रांच पे आ गया. यू कैन सी कि मैंने जो अबाउट और HTML फाइल बनाई थी वो अब गायब हो चुकी है. एवरीवन सॉ दैट, राइट. मैंने एक अबाउट डॉट HTML बनाई, अब वो गायब हो चुकी है, राइट. सो वो मैंने अबाउट ब्रांच में बनाई थी एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर. अब मैं आ चुका हूं रियलिटी के अंदर. रियलिटी के अंदर मैंने अब तक अबाउट बनाया ही नहीं, है ना. किसी और को पता ही नहीं कि मैंने अबाउट बनाया. सो अब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने ये जो यूनिवर्स में जो फाइल बनाई थी उसको मैं रियलिटी में लेके आ जाऊं. ओके, सो इसको कैसे करेंगे, उसके लिए होता है गेट मर्ज. ओके, तो गेट मर्ज ये ना आपको उस ब्रांच में रह के करना रहता है जिसमें आपको मर्ज करना है दूसरे वाले को. बेसिकली मतलब क्या कि अगर मैं मेन पे हूं, मैं मेन के अंदर किसी और ब्रांच को डालना चाहता हूं, राइट. तो गेट मर्ज पहले मुझे मेन पे होना पड़ेगा, राइट. तो पहले मेरे को गेट चेकआउट मेन करना पड़ेगा, एंड बाद में मैं नाम लिख सकता हूं उस ब्रांच का जिसको मुझे मर्ज करना है मेन के साथ. सिमिलरली लेट्स से अगर कोई और ब्रांच होती टेस्ट, और अगर मैं अबाउट ब्रांच के अंदर होता, अब मुझे टेस्ट को अबाउट के साथ जोड़ना है. सो मैं अबाउट में रहते हुए लिखूंगा गेट मर्ज टेस्ट, और वो टेस्ट अबाउट में जुड़ जाएगा. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टाइप गेट मर्ज एंड द नेम ऑफ द ब्रांच. अच्छा, अभी आप लोग देख पा रहे रहोगे ये अबाउट फाइल यहाँ पर आ चुकी है. सो मैंने क्या किया, उस दूसरी यूनिवर्स से उस फाइल को उठाई और उसको रियलिटी में लेके आ गया. चलो अभी देखते हैं कि कमिट्स का क्या हाल है. ओके, सो गेट लॉग करे. सो यहां पर आप लोग देख पा रहे रहोगे एक नया कमिट आ चुका है. ये कमिट मैंने मेन पर नहीं बनाया था, ये कमिट मैंने अबाउट में बनाया था. क्या होता है कि जब आप गेट मर्ज करोगे, यहां पर आपने जितने भी कमिट्स किए रहेंगे इस लाइक लेट्स से मैंने यहां पर 3 कमिट्स किए थे इस ब्रांच के अंदर. लेट्स से मैंने 3 कमिट्स किए थे इस ब्रांच में. जब मैं मर्ज करूंगा, सो गिटहब क्या करेगा, एक एक करके इन सारे कमिट्स को लाइन में
यहाँ पर लगा देगा। सो अगर मैंने तो अभी एक कमिट किया है, अगर मैंने 2-3 कमिट्स किए होते तो सारे के सारे कमिट्स आ चुके होते हैं। ओके, नाउ लेट्स वन मोर थिंग। ओके, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे रहोगे, पहले यहाँ पर मेन दिख रहा था, अब यहाँ पर मेन कॉमा अबाउट दिख रहा है। इसका मतलब क्या, दो एक्टिव ब्रांचेस है अभी। ओके, मेन एक एक्टिव ब्रांच है, अबाउट एक एक्टिव ब्रांच है, और हेड जो है फिलहाल दोनों के ऊपर है। दोनों का मतलब क्या, कि हेड इज द लेटेस्ट कमिट और वो दोनों ब्रांचेस को देख रहा है। अच्छा, मैंने ये फीचर इंप्लीमेंट कर दिया, नाउ आई वांट कि ये जो ब्रांच है मुझे डिलीट करनी है, बिकॉज अब मेरा इससे काम खत्म हो चुका है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टाइप गेट branch dash d and I can type the name of the branch and it will say deleted branch about। अगर मैं अभी git log करूं तो क्या दिखेगा, यहां से about चला गया, अभी सिर्फ main है that is active। क्या सबको ये समझ में आया? I want a thumbs up if you understood this। okay okay, decent amount of people। चलो, अभी आप लोग को एक असाइनमेंट, जितने भी लोग देख रहे हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक अ न्यू ब्रांच। सो गेट ब्रांच करेंगे, उसका एक नाम देंगे। ओके, गेट ब्रांच बनाया पहले, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये दिस इज नॉट द कमांड फॉर मेकिंग अ न्यू ब्रांच, ये दूसरा है। आई वॉन्ट एवरीवन टू मेक अ न्यू ब्रांच यूजिंग गेट चेकआउट डैश बी एंड द नेम ऑफ योर ब्रांच। ठीक है, गेट चेकआउट डैश बी से एक नया ब्रांच बनाया मैंने। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं अभी उस ब्रांच के ऊपर हूं, लेट्स मेक सम चेंजेस, लेट्स ऐड ऑल ऑफ दोस चेंजेस एंड लेट्स कमिट देम। ओके, सो कमिट कर दिए मैंने सारी चेंजेस। उसके बाद आप क्या करोगे, उस ब्रांच से हटोगे, मेन ब्रांच पे आओगे। सो मेन पे आने के लिए गेट चेकआउट मेन में आ गया, मेन के ऊपर, और अब मैं मर्ज करना चाहता हूं उस ब्रांच को। सो गेट मर्ज एंड द नेम ऑफ द ब्रांच। इतना सब करके दिखाएंगे मेरे को, एंड आई वांट अ थम्स अप व्हेन यू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस। ओके, सो नया ब्रांच बनाओ, नया ब्रांच का नाम दो, उसके अंदर एक कमिट करो, मेन पे आओ और मर्ज कर दो। वरुण इज द फर्स्ट वन टू कंप्लीट दिस। आयुष, चंद्रबानु, वैभव, ये लोग एक्चुअली फॉलो अलोंग कर रहे हैं यार। ओके, ऋषभ, ठीक है। अच्छा, किसी को अब तक कोई डाउट है क्या, क्योंकि मैंने डाउट्स बहुत टाइम से लिए नहीं है अभी। डज एनीवन हैव एनी डाउट्स, प्लीज रेज योर हैंड। ये इंटरैक्टिव सेशन है, आई वांट एवरीवन टू बी एक्टिव राइट नाउ। अच्छा जितिन, डू यू हैव अ डाउट? जितिन, you can unmute। Hello. Yes। So I had a doubt that when you said to change, revert or and reset, हम्म, that command wasn't working in my terminal. यस। क्या एरर दिख रहा था उसके अंदर? Failed to reset. फेल टू रीसेट। आपने हैश बराबर डाला क्या, जो आपका जी कमिट हैश था हाँ बराबर था? कैन यू कॉपी द लाइंस ऑफ कोड दैट यू डिड, एंड क्या आप ये चैट में डाल सकते हो? आई विल हाँ लुक एट देम। ओके, sure. यूजुअली फेल टू रीसेट सिर्फ तभी होता है जब आपने हैश बराबर से ना डाला हो, दैट इज द ओनली रीजन यूजुअली। तो ओके, एनीवन एल्स हैज एनी डाउट्स जब तक ही इज सेंडिंग दैट? ओके, चंद्रबानु। ओके, मेरा भी सेम था, लाइक रीसेट और रिवर्ट में ही था। लाइक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि रीसेट कब यूज करना है, ये रिवर्ट कब यूज करना है। ओके, सो आई विल टेल यू समथिंग। चलो इसको समझते हैं फिलहाल। गेट रीसेट क्या करता है? गेट रीसेट एक कमिट के ऊपर जाता है। ओके, सो ये हमारा गेट लॉग है एंड आई वांट टू गो बैक टू अ कमिट। तब मैं क्या करूंगा, गेट रीसेट यूज करूंगा। गेट रिवर्ट क्या करता है, आपकी जो स्टेजिंग एरिया की जो फाइल्स है, आपके जितने भी चेंजेस है उनको निकाल देता है और लेटेस्ट कमिट के ऊपर लेके जाता है। सो गेट रिवर्ट का अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन खोलूं, सो बेसिकली you will see revert the changes that the related patches introduce and record some new commits that record।
बेसिकली इट इज सेइंग दैट आप जो चेंजेस अभी कर रहे हो, जितने चेंजेस आपने अभी किए वो सारी चेंजेस को आपको इरेज करना, यू वांट टू गो बैक. ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस. I will type git log. Let's say I want to go back to this. I will type git revert and I can type this. Okay, so अभी आप देख पा रहे रहोगे that all of the files are gone. अच्छा, इसने क्या किया बेसिकली, दैट जो चीजें मैंने की थी सबसे फर्स्ट कमिट के अंदर, इट टुक मी बैक टू दैट. उसने मेरे सारे चेंजेस को रिवर्ट कर दिया. ओके, सो अब मैं यहां से निकलना चाहता हूं वैसे. क्यों? ओके, सो अब इसने क्या किया, मैंने जो चेंजेस की थी उनको रिवर्ट कर दिया, एंड जो मैंने चेंजेस अभी वाले कमिट में की थी उनको रहने दे दिया. बेसिकली रिवर्ट क्या करता है, ऑपोजिट करता है. आपने अगर कुछ बनाया है तो रिवर्ट उसको तोड़ेगा, अगर आपने कुछ तोड़ा है तो रिवर्ट उसको बनाएगा. ओके, सो ये करता है वो. रीसेट क्या करता है, आपके चेंजेस को निकालता है. सो आपको कब यूज करना चाहिए रिवर्ट? यूजुअली आपको यूज नहीं करना चाहिए. रिवर्ट क्या करता है, अगर आपने कुछ डिलीट किया है तो उसको ऐड करेगा, अगर आपने कुछ ऐड किया है तो उसको डिलीट करेगा, उल्टा करता है वो. बट यूजुअली आपको क्या करना रहेगा, आपको आपकी गलतियों को पीछे गलतियों को निकालना रहेगा, तो आप गेट रीसेट यूज करोगे. गेट रीसेट क्या करेगा, उस कमिट के ऊपर लेके जाएगा. अब फिलहाल आप देख पा रहे रहोगे कि मैंने जो 2 फाइल्स बनाई थी वो अब चली गई है ना. सो आई डोंट वांट दैट. सो मैं क्या करूंगा, फिर से इसने क्या किया कि एक नया कमिट बना दिया यहाँ पर, बट आई डोंट वांट दैट. सो मैं क्या करूंगा, आई विल गो बैक, इसको कॉपी करूंगा, गेट रीसेट डैश डैश हार्ड एंड देन दिस. ओके, सो नाउ मेरी सारी फाइल्स आ चुकी है फिर से, और उस रिवर्ट ने जो कमिट बनाया था ना, वो आप देख पा रहे रहोगे कि वो अब चला गया है. राइट, सो बेसिकली रिवर्ट जो है ना, थोड़ा सा इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन. जो जिनको नहीं पता है हाउ डज दिस वर्क, गेट रिवर्ट आप कभी यूज नहीं करोगे, आप यूजुअली गेट रीसेट यूज करोगे, जो एक कमिट में जाने के लिए रहता है पीछे. तो अभी आपको मैंने करके दिखाया रहेगा. होपफुली दैट वुड हैव क्लियर्ड आउट थिंग्स. अगर कुछ और डाउट है तो बता सकते हो. द थिंग इज, आपने जैसे एक ये फाइल में सब उड़ा दिया. ओके, देन आपने कमिट किया, फिर आपको रिवर्ट आना, प्रीवियस स्टेप पे आना है, तो आपने रीसेट मारा. तो रीसेट में अब वो प्रीवियस हैश का आपने यूज किया जो कमिट किया. yes. तो फिर इसमें हार्ड का क्या यूज था, वो जो हार्ड कीवर्ड था? ओके, सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ. बेसिकली गेट रीसेट के 3 मोड्स रहते हैं. ओके, दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, मैं सिंपल में बताता हूँ. देयर आर 3 मोड्स. फर्स्ट होता है सॉफ्ट, देन होता है मिक्स्ड, एंड देन होता है हार्ड. ओके, सॉफ्ट क्या करता है, बेसिकली एक जो भी आपके जो उस कमिट में जितने भी फाइल्स थे ना, सारे के सारे आपके चेंजेस को रहने देता है, एंड आपको उस कमिट के ऊपर लेके जाता है. सो कीप्स ऑल द चेंजेस एंड टेक्स यू बैक. ठीक है. मिक्स्ड क्या करता है, मिक्स्ड आपके सारे के सारे चेंजेस को स्टेजिंग में डाल देता है, स्टेजिंग एरिया में डालता है, एंड टेक्स यू बैक. ओके, अब जो हार्ड रहता है, हार्ड क्या करता है, डिलीट्स ऑल द कमिट्स आफ्टर द हैश. सो मैंने जो कमिट हैश दिया था उसको, उसके आगे के जितने भी कमिट्स हैं उनको डिलीट ही कर देगा. सॉफ्ट और मिक्स्ड क्या करते हैं, उन कमिट्स को रहने देते हैं, दे डोंट डिलीट दोस कमिट्स. ओके, सो अगर मैं आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये दिखाऊं अगर, सो गेट रीसेट का आपको यहाँ पर दिख के आएगा दैट देयर आर you'll be able to see yes, soft, mixed and hard. अच्छा, ये जो मिक्स्ड वाला रहता है ना, ये जो डिफॉल्ट होता है ये. ओके, हम क्या करना चाहते हैं, हम एक कमिट के आगे के सारे कमिट्स को निकालना चाहते हैं, तो मैं हार्ड करूंगा यूजुअली. सॉफ्ट क्या करेगा, डज नॉट टच द इंडेक्स फाइल, ये ना आपके सारे के सारे चेंजेस को रहने देगा, एंड आपको पीछे लेके जाएगा. बेसिकली ऐसा रहता है. ओके, सो यूजुअली तो मैं रेकमेंड करूंगा दैट यू कैन हैव हार्ड, use get reset hard usually, तो अगर आपको पीछे जाना है. Okay, any other doubts anyone? So we can go forward. I'll just turn on the charging. Okay, so I hope everyone was able to make a branch, commit to that branch and merge that branch, and बाद में delete भी कर पा रहे रहोगे. get branch dash d रहता है उसके लिए, get branch
-d to delete it. ओके, अब मैं एक दूसरी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, which is इश्यूज और पुल रिक्वेस्ट और व्हाटएवर. अभी हम ओपन सोर्स के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है. अब क्या करेंगे, अभी हम ज्यादा कमांड्स रन नहीं करेंगे, अब हम गिटहब के ऊपर जाते हैं. चलो, सो गिटहब पे जाते हैं. मैंने ना एक डेमो बनाई थी पहले. लेट्स मेक अ न्यू रिपोजिटरी. आई वांट एवरीवन टू गो टू गिटहब. अपने प्रोफाइल को खोलो, गो टू रिपोजिटरीज. प्रोफाइल यहां पर मिलेगा आपको टॉप राइट के अंदर, प्रोफाइल. गो टू योर रिपोजिटरीज. फिलहाल 0 रहेंगे. यहाँ पर 55 दिख के क्यों आ रहा है? बिकॉज आई मेड 55 प्रोजेक्ट्स जो मैंने गिटहब पे डाली है, राइट. आपका फिलहाल अलग दिख सकता है, नंबर अलग हो सकता है. आई मेक अ न्यू रिपोजिटरी एंड आई गिव इट अ नेम, गिट वर्कशॉप. ओके, एंड मैं इसको फिलहाल प्राइवेट कर लेता हूँ. प्राइवेट मतलब क्या, कोई और नहीं देख पाएगा. पब्लिक मतलब कोई और देख सकता है जिसके पास भी लिंक होगी. ओके, ये सारी चीजें आपको फिलहाल टेंशन करने की जरूरत नहीं है. आई विल एक्सप्लेन मोस्टली ये सारा होता क्या है. ओके, सो आई मेक अ न्यू रिपोजिटरी. आई वांट, अच्छा कितने लोग बना पाए एक रिपोजिटरी? प्लीज थम्स अप कर लो पटाख से. ओके, 4 5 6 पीपल. ओके, 6-7 लोग, ठीक है. सो यू मेड अ न्यू रिपोजिटरी. अच्छा, यहाँ पर आपको अभी 2 अलग अलग कमांड्स दिख रहे रहेंगे, 2 अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे रहेंगे. दिस इज व्हेन यू हैव नॉट मेड एनी गिट रिपोजिटरी. गिट इनिशियलाइजेशन आपने नहीं किया, हमने कर दिया है, राइट. सो हम क्या करेंगे, पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ. होपफुली एवरीवन कैन रीड, क्योंकि मेरे लैपटॉप के ऊपर ना अक्षर छोटे दिखते हैं, तो होपफुली एवरीवन कैन सी. आई विल गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि मैंने एक रिपोजिटरी पहले से बनाई है. यहाँ पर आप 3 कमांड्स देख पा रहे होगे. पहला है गेट रिमोट एड ओरिजिन एंड देन दिस लिंक. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हमने ब्रांचेस के बारे में समझा अभी. ओके, अभी फिलहाल के लिए अपने कमांड से सब लोग हट जाओ, मेरे स्क्रीन पे देखेंगे अभी सब लोग. आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड हाउ डज ओपन सोर्स वर्क. ओके, सो ये था मेरा प्रोजेक्ट. ठीक है, यहां पर से थोड़ा सा मेस निकाल देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा मेसी हो रहा है, राइट. ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है. अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, लेट से कोई और इस प्रोजेक्ट को ढूंढता है, या लेट से किसी और को कोलैबोरेट करना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर. सो 2 तरीके हैं उसके. एक होता है पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, एक होता है पुल रिक्वेस्ट और एक होता है फॉर्क. अच्छा, ये दोनों का जो मतलब होता है ना, उसको बाद में देखते हैं हम. पहले हम ये समझते हैं कि ये तो जो है ना, ये वाला जो ब्लैक वाला लाइन है, दिस इज लोकल. ये हमारे पीसी के ऊपर लोकली हो रहा है. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, मुझे इसको क्लाउड पे डालना है. मुझे क्लाउड पे क्यों डालना है? बिकॉज आई वांट मोर पीपल टू कोलैबोरेट ऑन दिस. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं गिटहब को लूंगा, मैं बोलूंगा गिटहब भाई, मैं चाहता हूं कि कोई और लोग, अगर किसी और का मन है कोलैबोरेट करने का, तो वो कोलैबोरेट कर पाए इस चीज के ऊपर. तो गिटहब बोलता है कि देखो, अगर आप ऐसा करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है. जो आपका स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, उधर से आप एक नया ब्रांच बनाओ, और ये ब्रांच जो होगा, ये होगा रिमोट. ओके, सो ये एक रिमोट ब्रांच है. रिमोट ब्रांच का मतलब क्या? आप आपके लैपटॉप पे बैठे बैठे क्लाउड पे चेंज कर पा रहे हो, उसका मतलब होता है रिमोट. अच्छा, रिमोट जॉब क्या होता है? आपका कंपनी कहीं और पे है, बट आप घर पे से काम कर पा रहे हो, दैट इज अ रिमोट जॉब. सो वैसे ये एक रिमोट ब्रांच है. रिमोट ब्रांच में जब भी आपका मन करे, आप आपके सारे के सारे कमिट्स को सीधा सीधा उठा के पुश कर सकते हो. ओके, सो जब भी मेरा मन करे, मैं यहां से उठा के गिटहब पे डाल सकता हूं. सो गेट रिमोट ऐड क्या करता है? बेसिकली एक नया ब्रांच बनाता है जो एक रिमोट ब्रांच होता है. ओके, सो मैंने इसको कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया मैंने. ओके, यहां पर है अभी एक दूसरा कमांड, गेट ब्रांच डैश एम मेन. अब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? मैंने आप लोग को बताया था, ये जो आपका प्रोजेक्ट का जो लाइन चल रहा है, मेन स्लैश मास्टर, ये दोनों में से कोई भी एक नाम हो सकता है. कुछ लोग के पीसी पे मास्टर रहेगा. मेरे पीसी पे डिफॉल्ट नाम मेन है. ओके,
गिटहब बोलता है ना कि ये ना सब लोग का अलग अलग होता है, ब्रांच का नेम कुछ भी हो सकता है, आई वांट के सबका मेन हो, राइट? क्या ये क्यों चाहता है? बिकॉज कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, राइट? सो गेट ब्रांच डैश एम मेन। अगर मैं चाहता तो मैं मेरे मेन ब्रांच का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं मेरे मेन ब्रांच का नाम आयुष रख सकता हूँ। नाउ यू विल बी एबल टू सी, जब मैं गेट ब्रांच डैश ए करूँ, so there is only one branch which is Ayush. But usually अगर आप GitHub पे डालना चाहते हो तो you want that there is consistency, so आप लिखोगे git branch dash m main. Okay, अब main हो गया। अब फाइनल कमांड होता है पुश। अब इसको समझते हैं पहले, राइट? आई होप नोबडी इज फॉलोइंग अलोंग राइट नाउ, पहले सब समझ रहे इस चीज को। अब क्या है, लेट से ये जो स्टेट था यहां पर मेरा कोड इज वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग, देयर आर नो बग्स। नाउ मैं चाहता हूं मेरे लोकल ब्रांच में जो फाइल्स है जाए गिटहब के ऊपर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पुश, पुश करना, पुशिंग फ्रॉम माय लोकल ब्रांच टू द रिमोट ब्रांच। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा, जब आप चाहते हो कि जो रिमोट ब्रांच पे जो फाइल्स है वो आपके लोकल पीसी पे आ जाए, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पुल। ओके, इतना समझ में आ गया सबको? जब आप आपके मेन ब्रांच आपके लोकल ब्रांच से डालना चाहते हो गिटहब पे, वो होगा पुश। जब आप गिटहब से लोकल लाना चाहते हो तो वो होगा पुल। ओके, सो अब अगर मैं यहां पर आऊं और गिट पुश डैश यू, यू मतलब क्या? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ओरिजिन मेन। अच्छा, ये ओरिजिन जो है ना, ये आपके रिमोट ब्रांच का नाम होता है। ओके, सो यहां पर अगर हम आए, सो ये जो रिमोट ब्रांच जो है ना, उसका नाम यूजुअली ओरिजिन होगा, क्योंकि ये वाला जो है ये हमारा मेन रिपोजिटरी है। गिटहब आपको अलाउ करता है कि आप बहुत सारे रिमोट ब्रांचेस पे भी डाल पाओ। ओके, सो अगर आप चाहते हो आप 2 3 4 रिपोजिटरी में डाल सकते हो, उन सबका रिमोट नाम अलग होगा, राइट? ये होगा लेट्स से कुछ और नाम होगा, इसका कुछ और नाम होगा, बट मेनली अब हम जो यूज कर रहे हैं वो है ओरिजिन। ओके, आई वॉन्ट टू पुट ऑल ऑफ माई फाइल्स फ्रॉम द करंट, जो ब्रांच से उठाना है मैं चाहता हूं कि मेन से उठाओ, ओरिजिन पे डालो। ओके, सो गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। जैसे ही मैं ये करूंगा, ये अपलोड करना चालू कर देगा सारे फाइल्स को। नाउ इफ आई कम बैक टू गिटहब एंड यहां पर रिफ्रेश करूं मैं, you'll see that all of the files are over here. Did everyone understand this? Okay, so what I want you to do right now is कि आपके लोकल इसमें जाओ, रिपोजिटरी के अंदर, उसके अंदर जाओ, रिमोट ऐड करो। पहले रिमोट ऐड का जो कमांड है वो आपको गिटहब खुद दे देगा। अगर नहीं दे रहा है, अगर आपने गलती से रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर कोड पे क्लिक करना, यहाँ पर एक लिंक आएगी, उसको कॉपी कर देना, एंड देन गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओके, सो उसका कमांड होता है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड देन द लिंक ऑफ द दिस थिंग। ओके, आप लोग एक्सेस नहीं कर पाओगे मेरे रिपोजिटरी को बिकॉज इट इज प्राइवेट। सो ये हमने कर दिया। आफ्टर दैट वंस यू ऐड द रिमोट, ये ट्राई टू पुश, सो गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। सो इससे क्या होगा, आपके मेन से उठेगा और ब्रांच में ओरिजिन में चला जाएगा। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि यहां पर कोई और कोलैबोरेट कर पाए, है ना? अच्छा, पहली बात बिफोर वी मूव ऑन, कितने लोग ने ये 2 कमांड्स कर दिए गिट के? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 2 कमांड रन हो गए। किसी का फेल तो नहीं हुआ, राइट? अगर फेल हो रहा है तो प्लीज आपका एरर बता दो मुझे, अगर हो रहा है तो। ठीक है, सो अब मैं क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट मोर पीपल टू बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई प्रोजेक्ट। ओके, उसके जो है ना 2 तरीके होते हैं, एक होता है फोर्क, एक होता है पुल रिक्वेस्ट। ओके, बेसिकली क्या होता है दोनों के अंदर, अगर समझो कोई और बंदा है, सो आई मेक अ न्यू पर्सन ओवर हियर।
ये बंदा आप हो, ठीक है, दिस इज यू एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू अ प्रोजेक्ट. सो लेट्स से ये जो नीचे है ये एक प्रोजेक्ट है किसी और का, यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोजेक्ट. आप दो चीजें कर सकते हो. पहली बात, गिटहब आपको अलाउ करता है कि ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के ऊपर आप जाओ, एक नया ब्रांच बनाओ एंड उसके अंदर एडिट्स करते रहो. इसको हम बोलते हैं फोर्क. ओके, सो दिस इज अ फोर्क. व्हाट इज अ फोर्क? फोर्क इज नथिंग बट दूसरे के ओरिजिन ब्रांच से आपने एक ब्रांच बनाया एंड आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो. ठीक है, सो आप इसके अंदर चेंजेस करते रहो, कमिट्स करते रहो, जो करना है करो. फाइनली जब आपको, आप चाहते हो कि आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया एंड आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप करोगे एक पुल रिक्वेस्ट. इसको हम मर्ज नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट. ओके, सो व्हाट इज फोर्क? फोर्क से आपने किसी और के कोड को अपना बना लिया, उसके अंदर चेंजेस किए, आप चाहते हो कि अभी ये जो चेंजेस है वो उसके पास चले जाए, तो आप करोगे एक पुल रिक्वेस्ट. ओके, सो व्हाट आई कैन डू राइट नाउ इज आई कैन, अभी मैं फोर्क नहीं कर सकता बिकॉज आई एम माई सेल्फ, राइट. मैं अपनी खुद की कॉपी बनाऊंगा तो थोड़ा मेस क्रिएट हो सकता है. बट लेट्स ट्राई टू मेक अ पुल रिक्वेस्ट राइट नाउ. अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे जो फोर्क है इज नथिंग बट अ ब्रांच, राइट. सो आई विल मेक अ न्यू ब्रांच. सो गेट चेकआउट डैश बी टेस्ट. ठीक है, मैंने एक नया ब्रांच बनाया. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी दो ब्रांच हो चुकी है. यहाँ पर आपको दिख के भी आएगा दैट रिमोट इज अ न्यू ब्रांच जो अभी ऐड हो चुकी है. ओके, सो टेस्ट. मैं टेस्ट पे आया एंड आई विल मेक लेट्स से अ फाइल test.html. इसके अंदर HTML. यहाँ पर मैंने आया, मैंने थोड़े से डेटा को ऐड किया एंड नाउ आई विल ऐड एंड कमिट एंड आई विल से एडेड test.html. अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस पूरी की पूरी ब्रांच को उठाऊंगा और उसको गिटहब पे डाल दूंगा. सो हाउ कैन आई डू दिस? आई विल डू गेट पुश डैश यू, ओरिजिन पे डालो. किस ब्रांच को डालो? टेस्ट को डालो. जैसे ही मैं ये करूंगा आई कैन कम बैक ऑन गिटहब. यहां पर आप देख पाओगे टेस्ट हैज recent pushes 2 seconds ago. एंड यहाँ पर जब मैं मेन क्लिक करूंगा रिफ्रेश करके, यहाँ पर आपको टेस्ट दिख के आएगा विच इज द न्यू ब्रांच राइट नाउ. अगर मैं इस पे जाऊं तो देयर इज अ फोर्क फाइल, दिस ब्रांच इज 1 commit ahead of main. सबको ये दिख पा रहा है. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक अ पुल रिक्वेस्ट. ओके, सो न्यू पुल रिक्वेस्ट. यू कैन ऑल्सो यूज कंपेयर. आई विल सिलेक्ट द ब्रांच टेस्ट एंड मैं देख सकता हूं मैंने क्या क्या चेंजेस की. मैंने एक नई फाइल को बनाया. आई कैन क्लिक ऑन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट. जब मैं क्रिएट कर दूंगा इस पुल रिक्वेस्ट को, अब ये इधर आ चुका है, राइट. अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस ब्रांच को मर्ज करूंगा विदाउट यूजिंग अ कमांड. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, अब मैं इस ब्रांच को मर्ज करूंगा. मर्ज कंफर्म. एज सून एज आई डू दिस, आप लोग देख पाओगे that now the main branch has the test.html क्योंकि उसने merge कर दिया इसके साथ, but the test still exists, right. so अब हम क्या करना चाहते हैं, we want to first of all हमारे यहां से डिलीट करना है, सेकेंड हमको रिमोट में डिलीट करना है, यानी कि गिटहब पे से निकालना है इस चीज को, क्योंकि वो क्या करता रहेगा, इसको ट्रैक करता रहेगा. एक तरीका होता है कि यू कैन गो ओवर हियर, you can go to view all branches, you can delete this test branch. Okay, so as soon as you do this, ये जो ब्रांच है वो निकल चुकी है. अभी सिर्फ मेन है. यहाँ पर सेम टू सेम मैं यहाँ पर आऊंगा. आई विल गो टू गेट चेकआउट मेन. यहाँ पर मैं आया एंड आई कैन पुल. अभी मैंने क्या किया है, मैंने कुछ चेंजेस जो की है वो गिटहब पे थी. आई वांट टू पुल ऑल ऑफ दोस चेंजेस फर्स्ट. सो गेट पुल ओरिजिन मेन. जैसे ही मैं गेट पुल ओरिजिन मेन करूंगा, यू विल बी एबल टू सी दैट देयर इज अ test.html फाइल ओवर हियर. ठीक है, सो उसने क्या किया, टेस्ट
डॉट एचटीएमएल फाइल जो मैंने मर्ज की थी गिटहब पे, मैंने इधर मर्ज नहीं किया उसको, मैंने गिटहब पे मर्ज किया, बट मैं उसको लेके आया यहाँ पर. नाउ आई कैन डिलीट माई ब्रांच, सो गेट ब्रांच डैश डी एंड आई विल से टेस्ट. अब वो फाइल अब वो ब्रांच जो है डिलीट हो चुकी है, बट स्टिल यू विल बी एबल टू सी वन थिंग कि यहाँ पर रिमोट ओरिजिन टेस्ट दिख के आ रहा है, राइट? अच्छा, इसका मतलब क्या, गिटहब जो है ना, गिट जो है अब तक उस रिमोट ब्रांच को ट्रैक कर रहा है. इवन इफ यू डिलीटेड दैट ब्रांच फ्रॉम गिटहब, इवन इफ यू डिलीटेड दैट ब्रांच लोकली, अब तक उसको ट्रैक कर रहा है. सो हाउ डू यू डिलीट दिस ब्रांच? उसके लिए जो आप करते हो, उसके लिए होता है git push dash u and I think sorry git push dash d होता है which is origin test. ये क्या करेगा, उसको डिलीट करेगा. ठीक है, रिमोट बेसिकली. ओके, सो मैंने पहले से डिलीट कर दिया गिटहब के ऊपर, सो अब मैं उसको ऊपर डिलीट नहीं कर सकता, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू अ फेच. सो डैश डैश गेट फेच ओरिजिन डैश डैश पी ऐसे कर सकते हो. सो बेसिकली क्या हुआ अभी कि मैं डिलीट करना चाहता था इधर से रह के, एक्चुअली मैंने गिटहब जीयूआई पे आप लोग को बताने के लिए डिलीट किया, बट मैं भूल गया कि मैंने डिलीट किया, राइट? सो एक तरीका रहता है ऐसे डिलीट करने का, दूसरा तरीका अब मैंने जीयूआई से किया डिलीट, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं यहां से भी, तो आई विल से गेट फेच ओरिजिन डैश पी. पी का मतलब क्या, प्रून. प्रून मतलब निकाल दो इस ब्रांच को, आई डोंट वांट दिस एनीमोर. सो नाउ इफ आई डू गेट ब्रांच डैश ए, you will see that there is no test branch, there is only main. Okay, and then there is this head का मतलब क्या, current github का जो चल रहा है अभी फिलहाल. Okay, so I was able to successfully delete that branch. I know this was a lot, हमने थोड़ा ज्यादा समझा अभी फिलहाल, but I want you all to go to GitHub, जो आपने repository बनाई थी उसके अंदर जाओ, या पहले एक ब्रांच बनाओ, ब्रांच को आप पुश करो गिटहब के ऊपर, गिटहब पे से मर्ज करो एंड देन ट्राई टू डिलीट दैट ब्रांच. इफ यू कैन डू दैट, प्लीज आई वांट अ थम्स अप ओवर हियर. ठीक है, सो फर्स्ट मेक अ न्यू ब्रांच, गेट चेकआउट डैश बी टेस्ट. ठीक है, यू गो ऑन गिटहब, आपने पहले कमिट्स वगैरह सारे किए, गिटहब पे जाओ, पुल रिक्वेस्ट बनाओ, पहले पुल रिक्वेस्ट बनाया, मर्ज कर दिया मैंने. नाउ यू वांट टू डिलीट करने के लिए आप या तो फिर जीयूआई से कर सकते हो, या तो फिर आप यहां से कर सकते हो. एनी which ways is fine. Okay, if you can do that, please, I want a thumbs up. Okay, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, so I guess we'll wait. जब तक हम वेट कर रहे हैं, if anyone has any doubts they can please answer. Nobody has any doubts? Okay, Ayush. So I have created the test branch, but it's not visible on the Git website GUI. हाँ, आपने उस ब्रांच को अब तक पुश नहीं किया है, मतलब आपने उस ब्रांच को बना दिया, आपको उस ब्रांच को पुश करना रहता है. सो गेट पुश डैश यू ओरिजिन एंड देन कौन से ब्रांच को डालना है, सो गेट पुश डैश यू ओरिजिन टेस्ट. ये क्या करेगा, अब आपके इस ब्रांच को गिटहब पे डालेगा, आपने वो किया नहीं रहेगा इसके लिए. Yes, I have pushed again the master. ओके, सो अभी दिख रहा है. Hmm. ओके, वर्क्स. एनीवन एल्स? किसी और को प्रॉब्लम्स आ रही है कोई? अच्छा, कितने लोग ने ये कर दिया जो मैंने अभी बोला था, पुल रिक्वेस्ट बनाया किसी ने? यार नो वन. ब्रांच डिलीट करने के बाद भी शो कर रहा है गेट ब्रांच करके कि टेस्ट ब्रांच. कहाँ पर शो हो रहा है? टर्मिनल में गेट ब्रांच किए, यहाँ पर आपको ब्रांच डिलीट करने के बाद दिख रहा है वो सेम ब्रांच. डिड यू यूज गेट ब्रांच डैश डी एंड द नेम? हाँ,
और ये कौन सी ब्रांच थी, लोकल थी कि रिमोट थी? मैंने लोकली टेस्ट ब्रांच बनाया, फिर आपने जैसे बोला पुश किया, फिर वहाँ पे उसको कमिट वो कंपेयर एंड कमिट किया, और फिर अपने लोकल रेपो में फिर ब्रांच डिलीट किया, और फिर गिट ब्रांच ए करके देखा तो फिर स्टिल टेस्ट ब्रांच दिखा रहा है सो मुझे। आपको जो टेस्ट ब्रांच दिख रही रहेगी ना, वो प्रोबेबली इज द ब्रांच जो गिटहब के ऊपर है। सो क्या आपने यहां से डिलीट किया था पहले? नहीं, वहां से कुछ नहीं किया था, हाँ, सो एक काम वहां करो। पे भी दिखा रहा है। हाँ, सो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल जो ब्रांच रहेगी उसको डिलीट करो यूजिंग गेट ब्रांच डैश डी, अगर ये आपने किया और नहीं हुआ। या हम्म, तो फिर आप क्या कर सकते हो, नहीं, उसमें सक्सेस दिखाया, उसमें दिखाया डिलीटेड ब्रांच टेस्ट। हाँ, अब जो आपने डिलीट किया है ना, आप ट्राई करो उसको पुश करने का। सो यू कैन डू अ गेट पुश डैश डी ओरिजिन एंड द नेम ऑफ द ब्रांच। ये जब आप करोगे ना तो वो रिमोट ब्रांच को और गिटहब से भी निकाल देगा। सो ट्राई टू डू दैट, गेट पुश डैश डी ओरिजिन टेस्ट। इससे लोकली भी जाएगा और जीयूआई पे भी शो करेगा। इससे रिमोट ब्रांच जाएगा, आपका लोकल वाला ब्रांच नहीं जाएगा। आपका जो ओरिजिन टेस्ट करके एक दिख रहा रहेगा वो चला जाएगा। हाँ, एक ओके, हाँ हो गया। हो गया? ओके, एनीवन एल्स, एनी डाउट्स? चलो, अभी मैंने आप लोग के लिए एक एक्टिविटी प्रिपेयर किया है एंड आई वांट एवरीवन टू डू दिस। मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है विद द नेम ऑफ गेट सेट गो। ये एक पब्लिक रिपोजिटरी है, एवरीवन कैन एक्सेस दिस। देयर आर अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस। आई वांट एवरीवन टू गो टू दिस लिंक। ये लिंक मैं ना आप लोग को ये जी मीट के चैट में दे रहा हूं। I want everyone to go to this link. I want everyone to fork this. ठीक है, फोर्क करके रख दो एक बार। आई विल टेल यू व्हाट टू डू। आपको वहां पर दिख रहा रहेगा एक दूसरा कमांड विच इज कॉल्ड गेट क्लोन। आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोबेबली? ठीक है, चलो यहाँ पर नहीं दिख रहा रहेगा। बेसिकली मैं क्या चाहता हूं, अगर मेरे पास एक जो प्रोजेक्ट है ना, अब इस प्रोजेक्ट पे आप लोग को सबको अगर काम करना है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना है, so you'll open up this link, you'll go to code, you'll copy this link. Now what you can do is you can make you can go to your file। यहाँ पर जाओ, एक नया let's say फोल्डर बना देते हैं हम। let's call this, ठीक है मैंने पहले से बनाया हुआ है वैसे तो, बट ठीक है, get set go। I'll go to this file and I'll open this up in my code editor। so code मैंने एडिटर में खोला अभी। नाउ आई वांट टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रोजेक्ट, राइट? तो मैं अपने कमांड अपने टर्मिनल में लिखूंगा गेट क्लोन एंड द लिंक। बेसिकली गेट क्लोन क्या करता है? गेट क्लोन बोलता है कि ये जो जितना भी सब कुछ है ना इधर, ये सारा लो और इधर डाल दो, मेरे लोकल रिपोजिटरी में डाल दो, उसके ओरिजिन से लो और मेरे लोकल इसमें डाल दो। सो गेट क्लोन जैसे ही आप करोगे, you'll be able to see there is a new folder जिसके अंदर आपके instructions होंगे। Okay, I want everyone to follow those instructions and complete that, and I want to see everyone's pull request over here। ठीक है, सारे के सारे उन instructions को follow करेंगे and एक pull request बनाएंगे। Okay, I want everyone to do this। Okay, that will be your first open source contribution, भले ही छोटा रहेगा, बट यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट? आपको आगे जाके अगर कोई और ओपन सोर्स काम करना है, आपको कोई और प्रोजेक्ट पे काम करना है, दिस इज हाउ यू विल डू दिस, राइट? सो आई वांट एवरीवन टू डू दिस। एज सून एज एवरीवन इज डन, प्लीज रेज योर हैंड या तो फिर एक इमोट करके दिखाओ। काउंसिल वाले तुम लोग भी कर लो इनके साथ। विल बी योर फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। बेसिकली मैं आप लोग को करने क्या बोल रहा हूं कि आप इसको पहले क्लोन करोगे, इस रिपोजिटरी को, गेट क्लोन एंड द लिंक ऑफ दैट रिपोजिटरी।
बाद में आप एक नई फाइल बनाओगे आपके नाम की, उसके अंदर ये 4 चीजें डाल देना एंड सेव कर देना. And then I want you to run all of these commands after changing your name. यहाँ पर आपको हर जगह जो your name दिख के आ रहा रहेगा ना, so वो your name change करना हर जगह से, and try to push your branch. मेन पे कोई पुश नहीं करेगा, ओके. नो वन विल गो. ये जो लास्ट का जो लाइन दिख रहा है ना, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, ये कोई नहीं करेगा. जो भी मेन पे करेगा ना, बेसिकली कुछ होगा नहीं, आपका जो फाइल रहेगा वो मेन पे डायरेक्टली होगा. बट ओपन सोर्स में क्या होता है ना, बेसिकली आप कभी भी आपके चेंजेस को डायरेक्टली मेन पे नहीं डालना चाहते. उससे क्या होगा कि अगर आपने कोई एरर या कोई बग किया था, वो पुश कर दिया अगर मेन पे, तो एरर्स क्रिएट हो जाएंगे. होगा कुछ नहीं, मतलब अभी जो करंट रिपोजिटरी उसके अंदर तो कुछ एरर वेरर आएगा नहीं. बट दिस इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप आपके ब्रांच को पुश करो and then create a pull request from that branch. Okay, try to do this. जो लोग कर देते हैं ना इस चीज को, प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मेरे को दिखता रहे रियल टाइम में कि कितने लोग ने ये कर दिया है. आई विल बी एक्सेप्टिंग योर पुल रिक्वेस्ट बाय द वे. सो जो लोग भी पुल रिक्वेस्ट डालेंगे, उनका पुल रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट भी करूंगा यहाँ पर. ओके okay? Was I muted right now? Yes. Okay, okay. So I was saying that Akhil, have you completed this? वो एरर आ रहा है. मैंने वो लिंक डाल के एंटर किया ना, तो वो एक एरर आ रहा है. What is it saying? एक सेकेंड. वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एंड कमांड नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसा कुछ दिखा रहा है. So what commands did you use? क्या आप कॉपी करके या फिर स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो what is happening on your end? So I'll be able to help you out. हाँ. Hello. Yes. Did someone say yeah? Hello? स्क्रीन शेयर करूं? हाँ हाँ चलेगा. You can do that. एक सेकेंड. ये Okay. थोड़ा गड़बड़ हुआ. So git clone object not found. This basically means that Git is not configured yet.
मतलब आपके पीसी के ऊपर गिट नहीं है। आई विल टेल यू वन थिंग, ऊपर वो जो पावर शेल दिख रहा है, सॉरी गलती से बंद हो, सॉरी एक सेकंड। हाँ हाँ अभी दिखेगा। हाँ ओके। सो ये जो पावर शेल दिख रहा है इधर टर्मिनल के टॉप राइट पे है पावर शेल। टॉप राइट पे नहीं इधर। नहीं, इधर इधर टर्मिनल के हाँ टर्मिनल। इधर, हाँ इधर। हाँ, उसके बाजू में एक ड्रॉप डाउन रहेगा, वहां से गिट बैश सिलेक्ट करो। ड्रॉप डाउन में से गिट बैश दिख के तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। डिड यू कॉन्फ़िगर गिट करेक्टली? क्योंकि मतलब ये जो एरर दे रहे हैं, इट इज सेइंग दैट गिट आपने इंस्टॉल नहीं किया या कुछ तो है। यहाँ एक सेकंड, इसका वो कैसे हो रहा है? गिट आपने इंस्टॉल किया था फ्रॉम गिट एससीएम? हाँ वो सब मैंने डाउनलोड किया था, वो आने से ज्वाइन करने से पहले वो सब किया था ऑलरेडी। हाँ, एंड गिट वर्जन करके आ रहा था, जब गिट डैश डैश वर्जन करोगे तो दिख रहा था कुछ? नहीं एज सच गिट, हाँ वो इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में दिख रहा था वो जब किया था। ओके, सो आई वांट यू टू मेक अ न्यू टर्मिनल। इसके बदले पावरशेल के बाजू में एक प्लस दिख रहा रहेगा, हाँ इस पे क्लिक करो। दिस इज ऑल्सो पावरशेल यार। एक काम करो, ड्रॉप डाउन पे कमांड लाइन करके दिख रहा है कुछ? कमांड लाइन, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट चलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करो। ओके, ट्राई टू डू गिट डैश डैश वर्जन स्पेस डैश डैश वर्जन, गिट स्पेस। अच्छा एक सेकंड, वर्जन ऐसे। हाँ, कैन यू सी दिस ना? गिट, इट सीम्स आपने कोई तो गलती किया है इंस्टॉलेशन के अंदर, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज गिट ओनली। तो आपने प्रोबेबली इंस्टॉलेशन में कोई तो गलती की है। जो इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट था ना, ट्राई टू गो थ्रू दैट वंस, एक बार। ओके, हाँ क्योंकि मैंने चेक किया, मैंने सब फॉलो किया, क्या मैंने चेक किया एक बार, पर उसमें तो सही दिखा रहा था, मतलब सब वो डाउन किया था, तो पता है। ओके, दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मतलब मेरा थिंकिंग फिलहाल ऐसा है कि शायद से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर ऐड नहीं हुआ रहेगा, सो इट इज नॉट ओके रिकॉग्नाइज्ड के लिए। यूजुअली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का भी चीज हो सकता है। ठीक है, इसके लिए ना probably I can give you a link to something. हाँ, ये वाला, try to follow this. I'll give you this link in the chat. Follow this and then tell me whether this problem is fixed or not. Okay? ओके। Yeah. ठीक है, कितने लोग ने किया यार? हैंड्स रेस करो, कितने लोग ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया यहाँ पर? आई एम नॉट एबल टू सी एनी। ठीक है, 2 आ चुके हैं, चिराग, विस्पुते एंड ऋतिक। Anyone else? Anyone else? I want at least 2 people more. Chandrabanu, yes. हाँ मैंने किया, बट आपको शायद से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। Okay, let me refresh. Did you just push the branch? हाँ पुश ओरिजिन मेरा नाम जो मैंने रखा था। हाँ. So I'm still not able to see your branch. यहाँ पर view all branches कर रहा हूँ. I'm not able to see. What is it showing in your terminal window? ब्रांच चंद्रभानु सेट टू ट्रैक ओरिजिन स्लैश चंद्रभानु। Okay. ठीक है, वैभव का एक आया है। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ वापस। Yeah, just make sure that you're following the instructions correctly. It's possible कि आपने कोई कमांड मिस किया होगा, because there are a lot of commands वहां पर। 3 pull requests आए हैं। Now what I can do is I can start merging each of them. So I'll merge and then I'll close this pull request सबके। So Vaibhav, Chirag, Vispute. So I'll merge यहाँ पर and close. Okay. And similarly, Ritik has actually made a few commits यहाँ पर। चलेगा, confirm and closed. So now hopefully I am able to see
ये सब के फाइल्स जो है ना मेरे प्रोजेक्ट में आ गए। तो नाउ आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कोलैबोरेशन होता है, राइट? मैं सारे के इन लोग ने अपने अपने पीसी पे बनाई ये फाइल्स को एंड एक पुल रिक्वेस्ट बनाया। नाउ आई एम एबल टू सी एवरीवन्स फाइल्स जो उन्होंने बनाई है। So this is going to be the final, hopefully the final this thing. मैं एक चीज उसके पहले आप लोग को बताना चाहता था, बिफोर आई कंक्लूड दिस वर्कशॉप। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, फाइनल चीज है वो। अगर आप देख पा रहे रहोगे दैट इन माय डायरेक्टरी, आई विल एक्चुअली गो इनसाइड git set go। यहां पर अगर मैं मेरी एक खुद की फाइल अभी बनाऊं, ओके, सो लेट्स से आई एम मेकिंग एन ayush.txt and I write anything inside this, ये फिलहाल अनट्रैक्ट है, राइट? बट बाकी लोगों ने चेंजेस कर दिए, राइट? दे एवरीवन हैज मेड सम चेंजेस ओवर हियर। अगर मैं यहां पर अभी गिट पुल करता हूं, गिट पुल ओरिजिन मेन, पहली बात तो ये मुझे एरर दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट फाइल देन दी अदर्स। बट बहुत बार ऐसा हो सकता है, मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं एंड जो फाइल्स में आपने चेंजेस किए उसी फाइल्स में किसी और ने भी चेंजेस किए हुए हैं, राइट? नाउ यू डोंट वांट टू इरेज ऑल ऑफ योर प्रोग्रेस। आप चाहते हो कि आप बाकियों के पहले प्रोग्रेस को अपने लोकल मशीन पे लेके आ जाओ विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। मतलब इट इज पॉसिबल, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो चेंजेस किए हैं, अगर ऐसा होता कि मैंने एक hrithik.txt यहाँ पर बनाया होता एंड उसके अंदर कुछ चेंजेस किए रहते और ऋतिक ने बाद में एक पुल रिक्वेस्ट किया, उसने मर्ज कर दिया। अब ऋतिक जो बनाया है उसने फाइल, उसको अगर मैं पुल कर दूं तो वो क्या करेगा? मेरे जो भी चेंजेस है उनको ओवरराइट कर सकता है या तो फिर एरर थ्रो करेगा। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आपने कोई चेंजेस किए, यू कैन टेम्पररीली पुट दैट असाइड यूजिंग गिट स्टैश। गिट स्टैश क्या करता है कि आपकी जो जो एडिट्स रहेंगे ना, अब फिलहाल मैंने इनको ट्रैक नहीं किया है, सो आई विल ट्रैक देम फर्स्ट। एंड गिट स्टैश जब मैं करूंगा ना, कि आपके सारे चेंजेस को एक टेम्पररी बकेट में डाल देता है। सो आई वांट एवरीवन ऑन माय ड्राइंग बोर्ड राइट नाउ, ये 3 एरियाज थी बराबर, एवरीवन रिमेंबर्स दीज 3 एरियाज, राइट? ये तीनों एरिया की जगह बदले में एक और एरिया होती है जिस इज दैट इज द स्टैशिंग एरिया। सो स्टैशिंग एरिया, बेसिकली स्टैशिंग एरिया के अंदर क्या होता है कि आपने जो जो चेंजेस इस स्टेजिंग एरिया के अंदर डाली थी, राइट? यहाँ पर जितनी भी चेंजेस डाली थी, यू वांट टू टेम्पररीली मूव दैट असाइड, यू वांट टू डू समथिंग एल्स एंड देन ब्रिंग देम बैक। तो आप क्या कर सकते हो? टेम्पररीली उनको स्टैशिंग एरिया में डाल सकते हो। अब यहाँ पर स्टोर होके रहेंगी वो, देन यू कैन मेक सम मोर चेंजेस, यहाँ पर कुछ और चेंजेस डालो एंड देन यू कैन ब्रिंग दोस चेंजेस बैक। ओके, सो मैंने अभी फिलहाल स्टैश किया है। इफ आई वांट टू ब्रिंग माय चेंजेस बैक, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू गिट स्टैश पॉप। गिट स्टैश पॉप फिर से मेरी ayush.txt को यहाँ पर लेके आ जाएगा, ठीक है? दैट वाज द फाइनल थिंग फॉर दिस वर्कशॉप। आई वांट एवरीवन टू कंप्लीट द होमवर्क जो मैंने आप लोग को दिया है, मेक द पुल रिक्वेस्ट। आई वांट एवरीवन टू डू दिस एंड विद दैट आई थिंक जितना मेरे को सिखाना था, आई हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दैट। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो अभी बता दो, आई विल बी कंक्लूडिंग दिस वर्कशॉप। 2.5 hours नहीं, 1.5 hours हो चुके हैं, दैट्स प्रीटी लॉन्ग। ओके आयुष। Yeah, I was trying to make a branch here on the thing you've done, but it says not a Git repository or any of the parent directories. ओके, वेयर इज दिस कमिंग? मतलब आपके लोकल इसके ऊपर आ रहा है? Yeah, local is VS Code. कैन यू शेयर योर स्क्रीन? Yeah, I can. Hold on. आई विल बी स्टॉपिंग माय प्रेजेंटेशन क्योंकि आई थिंक मेरे को जितना करना था आई हैव डन दैट। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ माय कमांड्स। अब मैं फिलहाल जो कर रहा हूँ कि आपके डाउट्स को एड्रेस कर लेता हूँ फटाक से, सो दैट हम वी कैन कंक्लूड दिस। ओके, So it says right here. I just created a new folder. I thought it was because I had
with some mistake, so I created another folder. Oh, I okay. cloned a repository and all that. हाँ, सो आपको ना पहले बेसिकली क्या होता है, गेट क्लोन क्या करता है, एक नया फोल्डर के अंदर डालता है ये सब। तो आपको पहले cd करना पड़ेगा इन दिस फोल्डर। तो आप पहले लिखो cd git set go, जो cd git टैब दबा दो, ऑटो कंप्लीट करेगा। अच्छा नहीं, गिट लिख, हाँ ठीक है चलेगा। अब इसके अंदर करके देखो वो चीज को, क्योंकि क्या था, आप पहले बाहर थे, बाहर कोई गिट रिपोजिटरी नहीं थी। आप बेसिकली गिट क्लोन जब आप करते हैं ना, तो एक नया फोल्डर, आप एक्चुअली बिना एक नया फोल्डर के भी कर सकते हो। अगर आप गिट क्लोन लिंक और डॉट लिखो आके, तो वो क्या करता है, बाद में फोल्डर नहीं बनाएगा, बट ठीक है चलेगा। सो नाउ यू कैन डू दिस। किसी और को आ रहा है ऐसा एरर? Thank you. यस। चलेगा। अखिल, डू यू हैव एनी डाउट्स? ये गिटहब सीखने के लिए और कोई कोडिंग लैंग्वेजेस आना जरूरी है कि ये गिट के रिलेटेड जो भी आपने टर्म समझे वो आना जरूरी है? सो गिट जो है ना, गिट इटसेल्फ, उसके लिए सिर्फ कमांड्स आने चाहिए। बट अगर आप गिटहब के अंदर थोड़ी और एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो, तो उसके अंदर ना, गिटहब के अंदर एक गिटहब एक्शंस करके एक चीज होती है। गिटहब एक्शंस यहाँ पर आपको 4th टैब के अंदर दिख के आएगा आपके रिपोजिटरी में। गिटहब एक्शंस क्या करते हैं, जब भी आप एक कमिट करो, आप चाहते हो कि कुछ ऑटोमेटिकली कुछ हो जाए, कि जैसे ही मैंने कुछ कमिट किया वैसे ही सबको लेट से नोटिफिकेशन पहुंच गया कि मैंने एक कमिट किया। जैसे ही मैंने कोई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, वैसे ही कुछ और हो जा रहा है। ये सब जो टाइप के ऑटोमेशंस होते हैं ना, जो ऑटोमेटिकली हो जाने चाहिए, उनके लिए आप गिटहब एक्शंस यूज कर सकते हो। गिटहब एक्शंस के लिए एक लैंग्वेज होती है YAML। YAML का मतलब होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या, कि उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं हम। सो बेसिकली आप इधर आके एक्सप्लोर भी कर सकते हो कुछ गिटहब एक्शंस को। आई थिंक मैंने मैनुअल वर्कफ्लो वाले को कभी यूज किया है, तो यहाँ पर आप आके पढ़ पाओगे कि ये सब एक्शंस कैसे होते हैं, राइट। एंड स्टेप्स के अंदर दिख के आता है कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे रहोगे ऑन इनपुट्स व्हाटएवर, जब भी कुछ होगा, कोई भी टाइप का इनपुट आएगा वर्कफ्लो के अंदर, यू विल बी एबल टू सी सम टाइप ऑफ एको, मतलब ग्रीटिंग करेगा किसी को भी। तो ये सारे जो ऑटोमेशंस होते हैं ना, ये आप कर सकते हो। दैट इज ऑन द गिटहब वाला साइड। गिट के लिए आपको सिर्फ कमांड्स आने चाहिए। एनीथिंग एल्स? ठीक है। So if nobody has any doubts right now, that will be Git set go for you. I hope everyone liked this workshop. हम लोग एक फीडबैक फॉर्म निकालेंगे। आई नो आप लोग को बोर होगा भरने को, बट दैट इज फॉर अस। ठीक है, सो वो फीडबैक फॉर्म भरना, लेट अस नो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वर्कशॉप। एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जितना भी आई कुड हैव डन। होपफुली आप लोग GSOC के लिए अप्लाई करो। GSOC अगर आपने सुना रहेगा, इज एन ओपन सोर्स बेसिकली अ कम्युनिटी जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप उस प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो। सो आई होप दैट पीपल गो फॉर दैट, एंड आई गेस दैट वुड बी इट फॉर टुडे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर joining today. CSI Visit will bring more such workshops to you, so stay tuned. Okay, goodbye. Everyone can start leaving now. अगर आपको कोई और डाउट्स है, यू कैन प्रोबेबली कॉन्टैक्ट हमारे जो POCs हैं।